Bismillahirrahmanirrahim. Start with the name of Allah, who is the most merciful and the most beneficent. My name is Muhammad Abdullah. Today, the topic of discussion is 2 by 2 table. This topic is the basic. This topic forms the basis of the epidemiological studies. What is the epidemiology? That is the prevalence of the disease in the community, the distribution, the prevalence, and the measures which we take to control the disease, that all together in the lump sum known as the epidemiology. So this 2 by 2 table forms the, it is a basic statistical tool which is used in the most of the epidemiological studies. So this is the brief intro of the brief introduction of the 2 by 2 table. 2 by 2 table also known as the contingency table. So don't get confused by this terminology, that is a contingency table. So it is also known as the contingency table. And what are the objectives of the learning? By the end of the lecture, you should be able to define the 2 by 2 table, and what are the attributes which we derived from the 2 by 2 table, and how we'll interpret that attributes. This is the basic, these are the basic objectives of today discussion. So what are the attributes which we derived from the 2 by 2 table? These are the odds ratio. Number one, please be remember, odds ratio is also known as the cross product ratio. Why it is called as a cross product ratio, I will tell you later, but please be remember at that time that odds ratio is also known as the cross product ratio. Then the second thing is that relative risk is known as, also known as the risk ratio. The third one is the sensitivity, fourth one is the specificity, and the fifth one is the positive predictive value. PPV stands for the positive predictive value, and the NPV stand for the negative predictive value. I will touch one by one to these attributes. First one is the odds ratio, or also known as the cross product ratio. So ratio is basically used to form an association or a connection between the risk factors and the occurrence of the disease. And the relative risk is same as that of the odds ratio, but odd ratio we will calculate in the case control study. These are the there are different types of the study design, I will tell you later, but at that time you should able to recall that odd ratio is known as the cross product ratio, and it is calculated in the case control study. The second thing is the relative risk or the risk ratio. It is calculated in the cohort study. There are two types of the main studies. One is the cohort study, and the second one is the case control study. There are also different studies are also there, such as cross section studies, but I will not go into detail. Here I only discuss the odds ratio and the relative risk. In today's discussion, I only discuss about the odds ratio and the relative risk. So what is the odds ratio? Basically हमें ये odds ratio क्या बता रहा है कि एक डिजीज़ हो गई है, और एक डिजीज़ है, उसके रिस्क फैक्टर के साथ उसकी कितनी स्ट्रॉन्ग एसोसिएशन है, ये हमें ऑड रेशो बता रहा है. फॉर एग्जांपल, लंग कार्सिनोमा की जब भी बात आती है तो आपके जहन में क्या आता है कि वो स्मोकर था कि नहीं था. तो ये स्मोकिंग जो है ये एक रिस्क फैक्टर है उसका. तो ये रिस्क फैक्टर की लंग कार्सिनोमा के साथ जो एसोसिएशन है उसे हम क्या कहते हैं? ऑड्स रेशो. एंड ऑड रेशो इज कैलकुलेटेड इन द केस कंट्रोल स्टडी. द सेकंड थिंग इज दैट रिलेटिव रिस्क रेशो. रिलेटिव रिस्क रेशो भी एसोसिएशन को ही शो करने के लिए कैलकुलेट की जाती है, लेकिन ये डिफरेंट स्टडी सच एज कोहॉर्ट स्टडी में कैलकुलेट की जाती है. Then we have the sensitivity. Sensitivity is nothing but the ability of a screening test to detect the true positive. This is known as a sensitivity. For example, के PCR की एग्जांपल ले लेते हैं, उसकी सेंसिटिविटी 99%, 100% उसकी सेंसिटिविटी है. मतलब कि अगर 100 बंदे हैं डिजीज़ के, नॉन उनके अंदर डिजीज़ है, तो वो हमारे पास क्या करेगा? अगर डिजीज़ पॉजिटिव एजेंट मौजूद भी है तो ये जो PCR टेस्ट है ये क्या करेगा कि उन 100 के अंदर ही ट्रू पॉजिटिव को डिटेक्ट कर लेगा. अगर कोई टेस्ट
ट्रू पॉजिटिव को डिटेक्ट कर लेता है तो उसको हम क्या कहते हैं, सेंसिटिविटी कहते हैं। ठीक है, इस टेस्ट की इतने % सेंसिटिविटी है। तो सेंसिटिविटी इज़ द एबिलिटी ऑफ अ टेस्ट टू डिटेक्ट द ट्रू पॉजिटिव। द अदर वे राउंड इज़ द स्पेसिफिसिटी। स्पेसिफिसिटी इज़ द एबिलिटी ऑफ अ टेस्ट टू डिटेक्ट द ट्रू नेगेटिव्स। तो अगर एक टेस्ट जो है वो ट्रू नेगेटिव को, अगर जिनको डिजीज़ नहीं है और उनको वाकई वो ट्रू नेगेटिव करार देता है, तो ये हमारे पास क्या होगा, ये उसकी स्पेसिफिसिटी होगी। देन विद द पॉजिटिव प्रीडिक्टिव वैल्यू। अब पॉजिटिव प्रीडिक्टिव वैल्यू क्या है कि आप ओपीडी के अंदर बैठे हुए हैं, कोई पेशेंट आता है फीवर के साथ, उसके कुछ साइन एंड सिम्टम्स और भी, रोज स्पॉट्स भी हैं, एब्डोमिनल पेन भी है, आप कहते हैं यार इसको टाइफाइड फीवर है। तो आप एक प्रीडिक्टिव वैल्यू देते हैं कि शायद ये ना हमारे पास क्या होगा कि ये जो इसका टेस्ट है ना टाइफाइड का, वो पॉजिटिव आ जाएगा। या अदर वे राउंड क्या है कि ये टेस्ट इसका पॉजिटिव नहीं आएगा। तो अगर वो टेस्ट पॉजिटिव आ जाता है तो वो आप कह देते हैं कि पॉजिटिव प्रीडिक्टिव वैल्यू, आपने प्रिडिक्ट किया कि यार ये साइन एंड सिम्टम्स की बेसिस के ऊपर ये टेस्ट जो है ये पॉजिटिव आ सकता है। इतने अगर 100 पेशेंट्स आप देख रहे हैं तो उनके अंदर फीवर आ रहा है, एब्डोमिनल पेन आ रहा है, रोज स्पॉट्स आ रहे हैं, तो आप साइन एंड सिम्टम्स की बेसिस के ऊपर कहते हैं यार इसका टेस्ट पॉजिटिव आ सकता है, 100 में से ना 60 का पॉजिटिव आ सकता है। तो ये पॉजिटिव प्रिडिक्टिव वैल्यू हो गई। और नेगेटिव प्रिडिक्टिव वैल्यू क्या है कि आपके पास पेशेंट्स आ रहे हैं, आप कहते हैं नहीं इसके सिम्टम्स इतने अच्छे नहीं हैं, अभी सिम्टम्स वेल डेवलप नहीं हुए, तो मे बी टेस्ट जो है वो इसका नेगेटिव आएगा। तो ये क्या है, नेगेटिव प्रीडिक्टिव वैल्यू। बेसिक हमने क्या करना है, 2x2 टेबल के अंदर, एपिडेमियोलॉजिकल स्टडीज़ के अंदर हम 2x2 टेबल को यूज़ करते हैं। इसको 2x2 टेबल, वाई इट इज़ कॉल्ड एज अ 2x2 टेबल, इट इज़ कॉल्ड एज 2x2 टेबल बिकॉज इट हैज़ 2 रोज एंड 2 कॉलम्स, दैट्स वाई इट इज़ कॉल्ड एज अ 2x2 टेबल। और हम उससे एट्रीब्यूट्स होते हैं जो हमें हासिल है, वो हम क्या क्या हासिल इससे कर सकते हैं। ऑड्स रेशो हम फाइंड करते हैं, वो मैंने आपको बता दिया, रिलेटिव रिस्क रेशो, सेंसिटिविटी बता दिया, स्पेसिफिसिटी बता दिया, पॉजिटिव प्रीडिक्टिव वैल्यू, देन वी आर द नेगेटिव प्रीडिक्टिव वैल्यू। अब ये ट्रेडिशनल 2x2 टेबल है। अब इसके अंदर ये बेसिक अगर आपने ये चीज़ें समझ ली तो आगे आपके लिए then the subsequent things will be so easy for you to interpret, to calculate, to organize. Everything will be so easy for you if you just remember this slide. This is the basic traditional 2x2 table used in the epidemiological studies. अब इसके अंदर हमने क्या किया, 2x2 2 रोज हैं 2 कॉलम्स हैं। अभी सबसे पहले आप देखें कि एक्स एक्सिस के ऊपर फ्रंट के ऊपर देखें हमने क्या किया है कि केसेस, और हमने ये देखें ये हमने केसेस और कंट्रोल्स, ये हमने एक्स एक्सिस के ऊपर बॉक्स के ऊपर हमने क्या किया है, केसेस और कंट्रोल्स लिखे। केसेस का मतलब है कि डिजीज़ जो है, इन केसेस के अंदर डिजीज़ वाले जो पेशेंट है ना, फॉर एग्जांपल लंग कार्सिनोमा, तो लंग कार्सिनोमा वाले जो पेशेंट आएंगे वो केसेस के अंदर आएंगे। और कंट्रोल्स क्या हैं, वो बंदे जो इनको क्या कहते हैं डिजीज़ नहीं है वो कंट्रोल के अंदर आएंगे। हमने वाई एक्सिस के ऊपर हमेशा इधर क्या लिखना है, इधर हमने एक्सपोजर लिखना है। यहाँ तो एक्सपोजर था या एक्सपोजर नहीं था। द सेकेंड थिंग इज डैट, अब ये देखें कि ए के अंदर हमने क्या लिखा है कि एक्सपोज्ड केसेस, एक्सपोजर था और कोई डिजीज़ डिवेलप हो गई है तो हम उसको यहाँ पे लिख देंगे। अगर एक्सपोजर था और डिजीज़ डिवेलप नहीं हुई तो हम उसको इस बॉक्स के अंदर बी वाले बॉक्स में लिख देंगे। द अदर वे राउंड इज डैट कि एक पेशेंट वो अनएक्सपोज था, रिस्क फैक्टर से अनएक्सपोज था, लेकिन फिर भी उसमें डिजीज़ डेवलप हो गई है, उसको हम इस बॉक्स सी में लिखेंगे। ठीक है, केसेस में यानी डिजीज़ डेवलप हो गई है लेकिन वो अनएक्सपोज था। द लास्ट वन इज़ द डी। तो डी के अंदर हमारे पास क्या, अनएक्सपोज था लेकिन हमारे पास उसको डिजीज़ डेवलप नहीं हुई, तो ये हमारे पास डी के अंदर आएगा। अब मैं आपको इसको एक एग्जाम्पल दे के समझाता हूँ। आज मैं ज़्यादा से ज़्यादा एग्जांपल लंग कार्सिनोमा की दूंगा बिकॉज स्मोकिंग के साथ इसका स्ट्रॉन्ग एसोसिएशन है, सारों को पता है, तो इट इज़ इजी टू अंडरस्टैंड। अब देखें कि लंग कार्सिनोमा, फॉर एग्जांपल इस केसेस की जगह आप लंग कार्सिनोमा लिख दें, और कंट्रोल्स के अंदर पेशेंट विदाउट लंग कार्सिनोमा और द पर्सनस विदाउट लंग कार्सिनोमा। एक्सपोज्ड की जगह यहाँ पे एक्सपोजर हम प्रोवाइड कर रहे हैं स्मोकिंग का, और अनएक्सपोज मतलब वो नॉन स्मोकर हैं, तो यहाँ पे एक्सपोज की जगह आप अज्यूम कर लें, जस्ट अज्यूम डैट एक्सपोज की जगह हम क्या लिख रहे हैं, स्मोकर्स, और अनएक्सपोज की जगह हम क्या लिख रहे हैं, नॉन स्मोकर्स। अब एक्सपोज्ड की जगह स्मोकर्स है, यहाँ पे हमने क्या लिख दिया, लंग कार्सिनोमा, और यहाँ पे हमारे पास क्या लिख दिया कि पेशेंट विदाउट द लंग कार्सिनोमा। अब एक बंदा उसको क्या है कि स्मोकर है और लंग कार्सिनोमा डिवेलप हो गया है, तो हम उसको यहाँ पे लिख देंगे। अब एक बंदा है वो स्मोकर तो है लेकिन लंग कार्सिनोमा इसको डिवेलप नहीं हुआ, तो उसको हम बी के अंदर लिख देंगे। अब वही है कि एक पेशेंट है वो नॉन स्मोकर है,
फिर भी उसके अंदर लंग कार्सिनोमा हो जाता है तो उसको हम किसके अंदर लेबल करेंगे, सी के अंदर। द लास्ट वन इज द डी। एक पेशेंट है वो नॉन स्मोकर है और उसके अंदर हमारे पास लंग कार्सिनोमा नहीं होता तो उसको हम डी के अंदर लेबल करेंगे। अब आपको पता है कि नॉट ऑल ऑफ द स्मोकर्स डिवेलप द लंग कार्सिनोमा। सो ये हमें किस तरीके पता लगा, ये हमें एपिडेमियोलॉजिकल स्टडी से पता लगा। आगे आगे चलते हैं, फिर आपको ये समझना आसान हो जाएगा। मैंने जिस तरीके आपको बताया था, दिस इज आल्सो नोन एज द कंटिजेंसी टेबल, और it is used to show the variables and the frequencies of the different epidemiological studies. सो इसको कंटिजेंसी टेबल भी कहते हैं। अब ये वही टेबल है, लेकिन आपने इसके से कंफ्यूज नहीं हो जाना। बेसिक डिज़ाइन हमारे पास यही है टेबल का, बेसिक डिज़ाइन यही है टेबल का, लेकिन थोड़ा सारा ये मॉडिफाइड है। अब देखें ऑन द मैंने सबसे पहले आपको बताया था कि डिजीज़ जो है वो सबसे ऊपर है, या तो होगी या नहीं होगी। एक्सपोजर उन्होंने यहाँ पे लिखा है, या तो होगा या नहीं होगा। अब यहाँ पे ना जितने भी यहाँ पे ए और बी के अंदर इंडिविजुअल्स होते हैं ना, उनको ए प्लस बी करके हम यहाँ पे टोटल इंडिविजुअल्स लिख देते हैं। सी प्लस डी को हम वैल्यू को टोटल करके हम यहाँ पे सी प्लस डी के अंदर करके लिख देते हैं। अब इसका फ़ायदा क्या होता है, हम आगे पढ़ेंगे रिलेटिव रिस्क में। रिलेटिव रिस्क को फाइंड करने के लिए हमें टोटल पेशेंट का वो एक फार्मूला है वो हमें यूज़ करना पड़ता है। तो हमें टोटल जो इंडिविजुअल्स हैं उनका नंबर पता होना चाहिए। तो वो हम किस तरीके करते हैं, ए प्लस बी को पॉजिटिव करेंगे तो जितने यहाँ पे इंडिविजुअल थे जितने यहाँ पे थे उन दोनों को पॉजिटिव करेंगे तो ए प्लस बी आ जाएगा या सी प्लस डी आ जाएगा। दूसरा तरीका ये है, अगर आप यहाँ पे टोटल नहीं करना चाहते आप यहाँ पे टोटल कर लें। अब यहाँ पे टोटल किस तरीके करेंगे, ए प्लस सी को मिला देंगे जितने इंडिविजुअल्स से, और क्या कहते हैं बी प्लस डी को मिला देंगे। तो ये हमारे पास डिफरेंट है। फिर लास्ट के अंदर ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी। मतलब आसान अल्फाज के अंदर ये है कि जितने परसेंट आपने जितने पीपल के अंदर स्टडी किया उनको कंबाइन करके आपने, अगर जिनको हमारे पास एक्सपोजर था, एक्सपोजर वाले जितने पेशेंट्स थे उनको आपने यहाँ पे लिख देना है, नॉन एक्सपोजर वाले जितने पेशेंट्स थे उनको आपने यहाँ पे लिख देना है। ये एक फार्मूले के अंदर चीज़ें यूज़ होती हैं, दैट्स वाई आई एम स्ट्रेसिंग अपॉन दिस। ठीक है, ये बात आपने याद रखनी। ये नीचे वाला आप ना ही इस्तेमाल करें तो अच्छा है, ये वाला ज़्यादा इजी भी है और आसान भी रहता है, लेकिन समझाने के लिए दोनों तरीके इस्तेमाल हो सकते हैं। देन वी हैव द स्टडी डिज़ाइंस। अब स्टडी डिज़ाइंस बेसिक क्या होते हैं, स्टडी डिज़ाइंस आर द बेसिक टेक्निक्स एंड द मेथड्स विच आर यूज टू कलेक्ट, analyze and interpret the data. This is known as a study design in the simple words. अब स्टडी डिज़ाइन बहुत किस्म के होते हैं, मैंने बस इधर यहाँ पे लिखे हैं दो तरह के। एक है केस कंट्रोल स्टडी, सेकंड वन इज द कोहॉर्ट स्टडी। अब ये नीचे देखें कितनी इंपॉर्टेंट मैंने एक लाइन लिखी है पर्पल के अंदर, दैट इज़ द, ये जो स्टडीज़ होती हैं ये हमारे पास इंपॉर्टेंट होती हैं इन इंटरप्रेटिंग द क्वेश्चन। क्वेश्चन के अंदर हमारे पास पूछा क्या गया है, ये हम स्टडी की बेस के ऊपर सारा क्वेश्चन कर रहे होते हैं कि यार ये केस कंट्रोल स्टडी है, क्रॉस सेक्शनल स्टडी है, कोहॉर्ट स्टडी है, ये इकोलॉजिकल स्टडीज़ है, कौन सी स्टडी है। तो हम ये बिकॉज ईच स्टडी इज़ स्पेसिफिक फॉर द ईच एट्रीब्यूट ऑफ द 2x2 टेबल। सो दैट्स वाई आई एम सेटिंग upon this point that if you know the study type then you will be correctly and hopefully correctly you will make the 2x2 table and calculate the attribute relevant attribute and interpret the results। लेकिन अगर आपको स्टडी का ही नहीं पता कि यार स्टडी कौन सी है तो ज़ाहिर बात है फार्मूला भी गलत लगेगा, फार्मूला गलत लगेगा तो ज़ाहिर बात है सारा आंसर भी गलत आएगा। तो स्टडी का पता होना आपको लाजमी बात है। अब केस कंट्रोल स्टडी क्या होती है, ये सिंपल, मैं आपको सिंपल डायग्राम है ये कि केस कंट्रोल स्टडी क्या होती है। केस कंट्रोल स्टडी ये है कि एक पेशेंट है उसको लंग कार्सिनोमा डेवलप हो गया या कोलन कार्सिनोमा। चले मैं एग्जांपल ले लेता हूँ लंग कार्सिनोमा की। लंग कार्सिनोमा उसको डेवलप हो गया, ठीक है। अब आप देखना चाहते हैं यार इसकी कॉज क्या हो सकती है, लंग कार्सिनोमा क्यों इसको डेवलप हुआ है, तो फिर आप उसकी हिस्ट्री लेने लग जाते हैं। आप उससे पूछते हैं तुम स्मोकिंग करते थे कि स्मोकिंग नहीं करते थे। अब स्मोकिंग को आप अगर कॉज मानना चाह रहे हैं तो स्मोकिंग के साथ उसकी रेशो देख लेंगे। ये जो एसोसिएशन है स्मोकिंग की और लंग कार्सिनोमा की, कि कार्सिनोमा डेवलप हो चुका है
और फिर आप बैक जा रहे हैं टाइम के अंदर, उससे आप पूछ रहे हैं कि आप स्मोकिंग करते थे या नहीं करते थे, तो वो अगर कहता है कि मैं स्मोकिंग करता था, तो आप स्मोकिंग की और लंग कार्सिनोमा की एक एसोसिएशन डेवलप कर रहे हैं। डिजीज़ हुई है, आप पास्ट में गए हैं और वहाँ से आप रिस्क फैक्टर्स को देख रहे हैं या रिस्क फैक्टर्स को इस्टेब्लिश कर रहे हैं, उनकी एसोसिएशन देख रहे हैं किसके साथ, जो हैपनिंग हुई है, जो हमारे पास आउटकम हुआ है। लंग कार्सिनोमा फ़र्ज़ कर लें एक आउटकम है और कॉज या एक्सपोजर एक स्मोकिंग है, तो आप उसको एसोसिएशन देखना चाह रहे हैं कि स्मोकिंग की, आया स्मोकिंग लंग कार्सिनोमा करती भी है कि ये ऐसे ही हवा में बात है। तो ये क्या है, केस कंट्रोल स्टडी इसे कहते हैं कि एक आउटकम हुआ है। फॉर एग्जांपल कोलन कार्सिनोमा हुआ है, आप उसका रिस्क देखना चाह रहे हैं कि यार इसको कोलन कार्सिनोमा क्यों हुआ है, तो आप पीछे जाते हैं देखते हैं, तो वो बताते हैं यार ये तो नॉन वेजिटेरियन है, ये तो सब्जियां खाता ही नहीं है, तो फाइबर नहीं होगा तो ज़ाहिर बात है कोलन कार्सिनोमा का रिस्क ज़्यादा हो जाएगा। तो आपने किसकी एक एसोसिएशन बना ली, आपने क्या किया कि आपने एसोसिएशन बना ली फाइबर की, फाइबर इन द डाइट एंड कोलन कार्सिनोमा की। तो ये हमारे पास जो एक आउटकम हुआ है, इस्टेब्लिश्ड है, उसकी कॉज को आइडेंटिफाई करना, उसकी एसोसिएशन देखना हैपनिंग के साथ या आउटकम के साथ, उसको हम क्या कहते हैं, केस कंट्रोल स्टडी कहते हैं। अब सेकंड स्टडी को, अब केस कंट्रोल स्टडी से हम क्या चीज़ फाइंड करते हैं, कौन सा 2/2 का एट्रीब्यूट फाइंड करते हैं, दैट इज़ द ऑड्स रेशो या क्रॉस प्रोडक्ट रेशो। सेकंड स्टडी जो मैं आपको बता रहा था, दैट इज़ द रिट्रोस्पेक्टिव कोहॉर्ट स्टडी। अब जो रिट्रोस्पेक्टिव कोहॉर्ट स्टडी है, अब इसके अंदर क्या चीज़ है, ये सिंपल है कि आपने एक्सपोजर उसको खुद ही प्रोवाइड किया है और आप फिर देखना उसका आउटकम देखना चाह रहे हैं। फॉर एग्जांपल आपने 100 बंदों को, 200 बंदे आपने लिए हैं, 200 इंडिविजुअल्स लिए हैं जिनके ऊपर आप स्टडी कंडक्ट करना चाह रहे हैं। आपने 100 इंडिविजुअल्स को क्या दे दिया है, आपने कॉफ़ी दे दी है, 5 कप्स ऑफ कॉफ़ी पर डे टू द 100 इंडिविजुअल्स। और हन और जो दूसरे 100 इंडिविजुअल्स हैं उनको आपने कॉफ़ी नहीं दी, और फिर आप ईयर्स के लिए, 10 साल के लिए आपने उनको कॉफ़ी दी रखी, क्योंकि ये स्टडीज़ जो होती है ना 1-2 साल में इस्टेब्लिश नहीं होती, जो क्रोनिक डिजीज़ के लिए होती हैं, तो ये इनके लिए ईयर्स का फॉलोअप चाहिए होता है। तो आपने उनको फिर 10 साल के लिए फ़र्ज़ करें देखा। अब 10 साल के बाद आप ना उनकी वैल्यूएशन कर रहे हैं कि यार आप देखना चाह रहे थे कि हमने कॉफ़ी दी है तो मायोकार्डियल इन्फाक्शन जो कॉफ़ी पीने वाले बंदे थे उनमें हुआ है कि नहीं हुआ, जो कॉफ़ी नहीं पीते थे उनमें मायोकार्डियल इन्फाक्शन के चांसेस कितने ज़्यादा थे। तो ये आप एसोसिएशन देख रही हैं कॉफ़ी की मायोकार्डियल इन्फाक्शन के साथ। एक्सपोजर आपने खुद ही प्रोवाइड किया और आप फिर आपको 10 साल या 20 साल के लिए उसको फॉलो अप कर रहे हैं हैपनिंग को देखने के लिए या आउटकम को देखने के लिए, आया कि कॉफ़ी मायोकार्डियल इन्फाक्शन करती भी है कि नहीं करती। सिंपल इज़ डैट। तो मैंने यहाँ पे दे दी एग्जांपल आपको दे दी है रिट्रोस्पेक्टिव कोहॉर्ट स्टडी की, कि कॉफ़ी अगर हम दे रहे हैं एक पेशेंट को, इस 100 इंडिविजुअल्स को दे रहे हैं कॉफ़ी और 100 को नहीं दे रहे, वो एक ही जगह पे रहते हैं, बाकी खाना पीना सारी चीज़ें उनकी सेम है, इन्वायरमेंट उनकी सेम है, हर चीज़ उनकी सेम है, सिर्फ फ़र्क क्या है कि 100 को हम कॉफ़ी देते हैं और 100 इंडिविजुअल्स को कॉफ़ी नहीं देते। अब हम देखना चाह रहे हैं कि जिनको कॉफ़ी देते हैं उनमें मायोकार्डियल इन्फाक्शन हुआ है कि नहीं हुआ, और जिनको कॉफ़ी नहीं दी उनको मायोकार्डियल इन्फाक्शन हुआ है कि नहीं हुआ। तो ये एक फ्यूचर स्टडी आ गई, इसे फॉरवर्ड स्टडी भी कहते हैं कोहॉर्ट स्टडी को। तो अब इस स्टडी को जो हम कह रहे हैं फॉरवर्ड स्टडी को, आपने एक एक्सपोजर कॉफ़ी उसको खुद ही प्रोवाइड की और आप देखना क्या चाह रहे हैं, हैपनिंग आउटकम देखना चाह रहे हैं कि आया कि उसको किसी किस्म का कैंसर तो नहीं डेवलप हो गया, उसको मायोकार्डियल इन्फाक्शन तो नहीं हो गया। तो ये जो एसोसिएशन है बिटवीन द रिस्क फैक्टर एंड द आउटकम इन दिस स्टडी, दिस इज़ नोन एज द रिट्रोस्पेक्टिव कोहॉर्ट स्टडी। और इससे हम क्या चीज़ फाइंड करते हैं, इसे हम रिलेटिव रिस्क या रिस्क रेशो फाइंड करते हैं। ठीक है, अब ऑड्स रेशो भी मैंने आपको बताया था, ये रिस्क फैक्टर और डिजीज़ के दरमियान एक एसोसिएशन है। ठीक है, रिलेटिव रिस्क भी हमारे पास क्या है, एक एसोसिएशन है रिस्क फैक्टर की डिजीज़ के साथ, लेकिन ये डिफरेंट स्टडीज़ में डिफरेंट तरीके से कैलकुलेट होती है और इसका डिफरेंट नाम है। केस कंट्रोल स्टडी में से जो हम कैलकुलेट करते हैं ऑड्स रेशो, और रिट्रोस्पेक्टिव कोहॉर्ट स्टडी से हम क्या चीज़ कैलकुलेट करते हैं, रिलेटिव रिस्क फाइंड करते हैं या रिस्क रेशो फाइंड करते हैं। वन एंड सेम थिंग बट डिफरेंस लाई इन द स्टडी डिज़ाइन। तो आगे चलते हैं, होप यू विल अंडरस्टैंड दिस कंसेप्ट।
अब हम कर रहे हैं ऑड्स रेशो। ऑड्स रेशो देखें उसी तरीके मैंने जो आपको टेबल बताया था, ये बेसिक टेबल है 2/2 का, पहले भी हम कर चुके हैं। आपने यहाँ पे वाई एक्सिस के ऊपर हमारे पास क्या लिखा, एक्सपोजर था, एक्सपोजर नहीं था। डिजीज़ है यहाँ पे, तो एक्स एक्सिस के ऊपर केसेस थे, मतलब डिजीज़ है यहाँ पे, और ये वो पर्सन हैं जिनके अंदर डिजीज़ नहीं है। उसी तरीके ABCD लिख दिया। ऑड्स रेशो फाइंड करने का सिंपल फार्मूला ये है कि आप ना इसको क्रॉस प्रोडक्ट रेशो भी कहते हैं, बिकॉज वी क्रॉस मल्टीप्लाई द प्रोडक्ट, वी क्रॉस मल्टीप्लाई द प्रोडक्ट, दैट वाई दिस इज नोन एज अ क्रॉस प्रोडक्ट रेशो। इसका ऑड्स रेशो का सिंपल फार्मूला ये लिखा हुआ है, ये जो है ऑड्स ऑफ द एक्सपोजर अमंग द केसेस एंड ऑड्स ऑफ द एक्सपोजर अमंग कंट्रोल्स, ये इसका कम्प्लेक्स सारा फार्मूला है कि A डिवाइडेड बाय द C, B डिवाइडेड बाय द D। आप देखें कि A ऊपर चले जाएगा, B नीचे आ जाएगा, सिंपल इज डैट। इस तरीके भी आप कैलकुलेट कर सकते हैं, और सिंपल हम क्या कर सकते हैं कि आप डायरेक्ट इसको कैलकुलेट कर लें। ऑड्स रेशो का एक ही फार्मूला याद रखें कि A को आपने D से मल्टीप्लाई कर देना है, B को आपने C से मल्टीप्लाई कर देना है। अब A और मल्टीप्लाई बाय द D जो आपने मल्टीप्लाई कर दी है, उसको आपने फिर डिवाइड कर देना है किसके साथ, B और C से, जो मल्टीप्लाई करके आपको रिजल्ट आया था। अब इसको, ये ऑड्स रेशो का फार्मूला है। अब फॉर एग्जांपल इंटरप्रिटेशन आती है ऑड्स रेशो की 1.9 या 90%, तो हम इसको 1.9 या 90% का क्या मतलब है। फॉर एग्जांपल कि यहाँ पे लंग कार्सिनोमा है और यहाँ पे स्मोकिंग है, और रेशो आई है 1.9, तो इसकी इंटरप्रिटेशन ये है कि दोज पर्सन who are the smokers and who smoke for the years develop lung carcinoma 1.9 times more as compared to the non smoker। मतलब स्मोकिंग करने वालों में 1.9 या राउंड कर लें, आप 2 कर लें, ठीक है, दो 2 टाइम्स ज़्यादा रिस्क है, ज़्यादा चांसेस हैं उनमें कार्सिनोमा डेवलप होने के एज़ कम्पेयर टू द नॉन स्मोकर। दिस इज सिंपल इज डैट। अगर 90% है तो मतलब एक स्ट्रॉन्ग एसोसिएशन है कि 90% जो है रिस्क, 90 टाइम्स या 90% मोर चांसेस हैं स्मोकर्स के अंदर लंग कार्सिनोमा डेवलप करने के, या एज़ कम्पेयर टू द नॉन स्मोकर्स। अब वाइवा में क्वेश्चन पूछा जाता है वाई वी कंट्रोल दैट, वाई वी टेक द कंट्रोल्स। यहाँ पे जो पर्सनस है जिनको डिजीज़ नहीं है, हमने उनको भी शामिल किया हुआ है, तो वो हम क्यों करते हैं, बिकॉज अगर आप केसेस को सिर्फ डिस्कस करेंगे तो वो बाइस्ड हो जाएगा, ठीक है, और कोई भी स्टडी अगर बाइस्ड होती है तो वो अच्छी स्टडी नहीं समझी जाती, वो रिजेक्ट हो जाती है, एथिकली उसकी कंसिड्रेशन नहीं मिलती। तो हम क्या करते हैं, कंट्रोल्स रखते हैं, हम कुछ पर्सनस रखते हैं विदाउट डिजीज़ और उनको सेम इन्वायरमेंट देते हैं, लेकिन कईयों को एक्सपोज कर देते हैं, कईयों को एक्सपोज नहीं करते, तो इसको कहते हैं हम कंट्रोल कहते हैं। और कंट्रोल हम रखते हैं अपनी स्टडी को नॉन बाइस्ड रखने के लिए, और एथिकली उसकी कंसिड्रेशन अच्छी हो, हमारी स्टडी अच्छी समझी जाए, इसलिए हम कंट्रोल्स रख देते हैं। वो इंडिविजुअल्स जो होते हैं वो क्या, कंट्रोल के अंदर जो इंडिविजुअल्स होते हैं वो सेम इन्वायरमेंट के अंदर सेम इन्वायरमेंट के से ही एक्सपोज हुए होते हैं जो डिजीज़ वाले होते हैं, ठीक है, एज़ कम्पेयर टू द डिजीज़। मतलब कि 100 अगर पर्सनस थे, स्मोकर्स थे, तो साथ ही 100 बंदे जो हैं वो नॉन स्मोकर उधर ही उसी कम्युनिटी में रह रहे हैं, और फिर हम उनके अंदर देख रहे हैं कि यार इनमें हर चीज़ सेम है, इनका रहना उठना बैठना हर चीज़ सेम है, लेकिन क्या है 100 जो है वो सिगरेट पीते हैं और 100 सिगरेट नहीं पीते। अब सिगरेट जो 100 पीते हैं, स्मोकिंग करते हैं, उनमें फिर हमने देखा कि रिस्क जो है वो क्या है, लंग कार्सिनोमा का ज़्यादा है। और वो हमें किस तरीके पता लगा, ये 2/2 टेबल से, एपिडेमियोलॉजिकल स्टडी से ही पता लगा, ठीक है। ये ऑड्स रेशो, बेसिक ऑड्स रेशो ये है। हमने क्या किया कि A को मल्टीप्लाई कर दिया D को, B से मल्टीप्लाई कर दिया C से, और अगर रिजल्ट आता है तो हमें रिजल्ट इंटरप्रेट भी करना आना चाहिए कि ये रिजल्ट क्या है। ऑड्स रेशो को मैंने आपको बताया था, इट इज़ आल्सो नोन एज अ क्रॉस प्रोडक्ट रेशो, A मल्टीप्लाई बाय द D, B मल्टीप्लाई बाय द C, सिंपल इज डैट। आपने सिर्फ क्या करना है कि यहाँ से A को आपने A को D से मल्टीप्लाई कर देना है, B को C से, और फिर इन दोनों के रिजल्ट्स को आपने डिवाइड कर देना है। तो ज़ाहिर बात है रेशो के लिए डिवीजन करते हैं तो आपके पास ऑड्स रेशो आ जाएगी। जो रिजल्ट आया आपको उसको डिफाइन करना भी आना चाहिए। अगर 2 आया तो 2 टाइम्स मोर चांस है डिजीज़ डेवलप करने का एज़ कम्पेयर टू द अदर पर्सन हु डू नॉट एक्सपोज। तो सिंपल इज डैट। आगे चलते हैं। इट इज़ आल्सो नोन एज अ क्रॉस प्रोडक्ट रेशो एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू। अब ये देखें, ये सिंपल, मैंने पहले सिंपल एग्जांपल्स लगाई हैं, सिनेरियोज लगाए हैं ताकि समझने में आसानी हो जाए, फिर हम आगे थोड़े सारे कम्प्लेक्स की तरफ जाएंगे। अब 100 पे अब जब भी सिनेरियो आए प्लीज़
प्लीज़ प्लीज़ आइडेंटिफाई द स्टडी डिज़ाइन। अगर स्टडी डिज़ाइन ठीक होगा आगे आप सारी चीज़ें ठीक करेंगे। आगे मैं आपको यूएचएस के क्वेश्चंस दिखाऊंगा, तब आपको इसकी अहमियत का ज़्यादा पता लगेगा। अभी तो मैंने सिंपल एक सिनेरियो लगाया ना, तो इस वजह से आपको पता नहीं लगेगा। अब देखें इसके अंदर क्या है कि 100 पेशेंट्स हैं विद लंग कैंसर एंड 100 पेशेंट विदाउट लंग कैंसर। तो विदाउट लंग कैंसर वाले भी 100 पेशेंट्स हमने लिए हैं और 100 पेशेंट है विद लंग कैंसर, वो स्टडी के अंदर हमने इनरोल्ड किए हैं। और जो विदाउट लंग कैंसर वाले किसके अंदर आएंगे, कंट्रोल के अंदर। अब ये जो कंट्रोल हमने क्यों लिया था, नॉन बाइस्ड करने के लिए अपनी स्टडी को, तो वो सारी डिस्कशन होगी हमारे पास। 100 पेशेंट विद लंग कैंसर एंड 100 पेशेंट विदाउट लंग कैंसर इनरोल्ड हो गए स्टडी के अंदर। अब दे वर क्वेश्चन, अब यहाँ से पहली लाइन जब मैंने पढ़ी ना, 100 पेशेंट्स विद लंग कैंसर, मतलब लंग कैंसर उनको हुआ है, हैपनिंग हुई हुई है, आउटकम पड़ा हुआ है। लंग कैंसर एक आउटकम है या हैपनिंग है या इफेक्ट है, तीन एक ही सिनोनिमस वर्ड हैं, ठीक है। तो ये जो हमारे पास 100 पेशेंट विद लंग कैंसर हैं, तो ये हैपनिंग हुई हुई है। तो मैंने आपको क्या बताया था, जहाँ पे भी हैपनिंग हुई होगी या आउटकम पहले से मौजूद होगा, तो वो कौन सी स्टडी होती है, वो होती है केस कंट्रोल स्टडी। आगे पूरा सिनेरियो पढ़ें और भी आपको क्लूज मिल जाएंगे। दे वर क्वेश्चन अबाउट द टोबैको यूज ओवर द पास्ट 20 ईयर्स, यानी कार्सिनोमा वाले पेशेंट हमने उठा लिए हैं, लंग कार्सिनोमा वाले, और हम पीछे फिर 20 साल पीछे उसकी हिस्ट्री ले रहे हैं। अच्छा तुम सिगरेट पीते थे कि नहीं पीते थे, तुम क्या करते थे। तो वो जो हमारे पास स्टडी है, यानी फ्यूचर से हम निकल के पास्ट में जा रहे हैं, तो ये वाली स्टडी कौन सी है, केस कंट्रोल स्टडी। सेकंड हमारे पास क्लू मिल गया। अब आगे देखें जो लास्ट लाइन है, दिस लाइन इज इंपॉर्टेंट, ये हमारे काम की है। यहाँ पे हमने यहाँ से 2x2 टेबल कंस्ट्रक्ट करना है। 90 ऑफ द लंग कैंसर पेशेंट रिपोर्टेड स्मोकिंग। 90 पेशेंट, 100 में से 90 ने क्या कहा कि हम स्मोकिंग करते थे, और 10 जो थे विदाउट लंग कैंसर, ठीक है। 90 ऑफ द लंग कैंसर पेशेंट रिपोर्टेड स्मोकिंग, 90 पेशेंट जो थे लंग कैंसर के, उन्होंने हमारे पास क्या किया, उन्होंने कहा कि हम स्मोकिंग करते हैं। एज डिड 10 ऑफ द पेशेंट्स विदाउट लंग कैंसर। अब जो विदाउट लंग कैंसर के पेशेंट थे वो भी हमारे पास क्या करते थे, स्मोकिंग करते थे, लेकिन वो क्या कहते हैं, कितने थे, सिर्फ 10 थे। और जो लंग कैंसर के साथ पेशेंट थे वो कितने स्मोकिंग करते थे, 90 थे। अब हमने इसको कंस्ट्रक्ट करना है 2x2 टेबल। मैं अब क्योंकि पावर पॉइंट से ही मैं आपको समझा रहा हूँ, तो मैंने पहले से कंस्ट्रक्ट करके रखा हुआ है, मैं आपको बताता हूँ किस तरीके की। सो ये मैंने टेबल कंस्ट्रक्ट की है। सबसे पहले देखिए मैंने क्या लिखा है, मैंने सबसे पहले ये स्टडी डिज़ाइन मैंने आइडेंटिफाई किया है। ये कौन सा स्टडी डिज़ाइन है, केस कंट्रोल स्टडी। और हम उससे क्या चीज़ हासिल हमारा क्या है, एट्रीब्यूट क्या है, ऑड्स रेशो या क्रॉस प्रोडक्ट रेशो हम कैलकुलेट करते हैं। और मैंने एक्स एक्सिस पे आप देखें क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, सॉरी वाई एक्सिस के ऊपर एक्सपोजर लिखा है, स्मोकर्स, नॉन स्मोकर, और डिजीज़ मैंने वाई एक्सिस पे लिखी है, लंग कार्सिनो कैंसर है, और कंट्रोल के अंदर वो पेशेंट है जिनको लंग कैंसर नहीं है। अब देखें ये तो हमारे पास सिंपल इतनी कार्रवाई करने के बाद ये तो आपने कार्रवाई कर दी सारी। अब देखें आपने अब एंट्रीज डालनी है, आपने नंबर लिखने हैं यहाँ पे 90, 10, आपने डाटा लिखना है। डाटा इज अ सेट ऑफ द डिस्क्रीट वैल्यूज विच व्हेन कंसिडर्ड अलोन कैरीज नो मीनिंग। 90 क्या है, कुछ नहीं है, ठीक है। ये एक डाटा हम पुट कर रहे हैं, तो सारे डाटा को अब मीनिंगफुल बनाने के लिए हम फार्मूलाज लगाते हैं। तो ये 90, 10 ये किस तरीके आया मैं आपको समझाता हूँ। अब देखें यहाँ पे उसने मेंशन किया हुआ है 90 ऑफ द लंग कैंसर पेशेंट रिपोर्टेड स्मोकिंग। तो लंग कैंसर देखें, लंग कैंसर ये लिखा हुआ है, 90 जो है लंग कैंसर वाले पेशेंट क्या है, स्मोकर्स थे। तो स्मोकर्स वाला आपने बॉक्स देखा, ये ऊपर वाला है, और लंग कैंसर उनको हुआ हुआ है। कितने कह रहे हैं, 90 जो है उनको लंग कैंसर है, और उन्होंने रिपोर्ट किया कि हम स्मोकिंग करते थे। तो मैंने इसको ए वाले बॉक्स में लिख दिया, ठीक है। लंग कैंसर है और स्मोकर्स हैं वो। तो 90 पीछे वाले सिनेरियो को देखें तो उसने मेंशन किया हुआ है कि 90 ऑफ द लंग कैंसर पेशेंट रिपोर्टेड स्मोकिंग, के 90 पेशेंट जो थे उन्होंने हमारे पास स्मोकिंग रिपोर्ट की है। अब आगे उसने क्या कहा था, एज डिड 10 ऑफ द पेशेंट विदाउट लंग कैंसर। और कुछ ऐसे पेशेंट थे लंग कैंसर के, कुछ ऐसे पेशेंट थे जिन्होंने स्मोकिंग तो की, लेकिन फॉर्चुनेटली उनको क्या हुआ कि लंग कैंसर डेवलप नहीं हुआ। तो 90 को मैंने यहाँ पे लिख दिया,
और मैंने 10 को यहाँ पे लिख दिया जिसके अंदर हमारे पास स्मोकिंग नहीं हुई। ये A B C D मैंने बाद में लिखा था, इसकी कोई इतनी ज़्यादा सिग्निफिकेंस नहीं है, ये सिर्फ समझाने के लिए है। तो 90 जो था लंग कैंसर स्मोकर्स जो थे एसोसिएशन जो है, अब आप चेक करने लगे हैं, लंग कैंसर आ गया, स्मोकर्स आ गया। तो 90 ने कहा कि हम स्मोकिंग करते थे। 10 ऐसे थे जो स्मोकिंग तो करते थे लेकिन उनको लंग कैंसर नहीं था। ठीक है, अब ये बाकी दो वैल्यू, ऊपर वाली तो समझ आती है कि यार ये स्मोकर्स से एक्सपोजर था उनका और उनको लंग कैंसर हो गया 90 को। ठीक है, और कंट्रोल में आपको पता लग गया कि यार ये स्मोकिंग तो करते थे लेकिन लंग कैंसर नहीं था। तो ये बाकी 10 और 90 ये कहाँ से आई वैल्यूज़, ये मैं आपको समझाता हूँ। अब आप देखें, उसने यहाँ पे सिर्फ दो वैल्यूज़ दी हैं, लेकिन यहाँ पे शुरू में पढ़ें, उसने कहा कि 100 पेशेंट्स हैं विद लंग कैंसर और 100 है विदाउट लंग कैंसर। तो ये सिंपल मैथमेटिक्स है कि अगर विद लंग कैंसर हमारे पास कितने पेशेंट आ गए, 100 पेशेंट थे, 90 जो थे वो स्मोकर्स थे। तो जाहिरी बात है 90 जब स्मोकर्स हैं तो इट इज़ ऑब्वियस डैट कि उसने अगर मेंशन नहीं किया है तो 10 जो हैं वो नॉन स्मोकर होंगे, सिंपल इज़ डैट। और 10 ऐसे थे जो हमारे पास स्मोकिंग तो करते थे, 10 ऐसे थे जो हमारे पास स्मोकिंग तो करते थे लेकिन उनको लंग कैंसर नहीं हुआ, विदाउट लंग डिजीज़, विदाउट लंग डिजीज़ वो स्मोकिंग करते थे लेकिन उनको कैंसर नहीं था। तो 10 तो हमने यहाँ पे लिख दिया। अब 90 ऐसे, जाहिरी बात है कि 100 उसने कहा है, उसने क्या कहा है कि हमारे पास 100 पेशेंट है विदाउट लंग कैंसर। अगर 10 जो हैं विदाउट लंग कैंसर के स्मोकिंग करते थे तो ऑब्वियस सारी बात है कि 90 जो है वो स्मोकिंग नहीं करते थे। तो ये थोड़ा सारा आपको ट्रिकी सारा क्वेश्चन आता है, आपको ये इंटरप्रेट खुद ही करना पड़ेगा और कोई बना के आपको नहीं देगा इस तरीके टेबल, ये आपने खुद ही बनाना है जिस तरीके ये अभी मैंने बनाया हुआ है। तो आपने खुद ही इंटरप्रेट करना है कि यार उसने सिर्फ पूरे जो पेशेंट की स्टडी है उसने 100 पेशेंट विद लंग कैंसर दे दी हैं, 100 विदाउट लंग कैंसर दे दी हैं, और फिर आगे उसने ये फाइंडिंग दी हुई है। तो सी और डी कहाँ से निकलेगा, वो आपकी जहानत से निकलेगा कि अगर 90 को लंग कैंसर था, आप स्मोकर्स थे, तो 10 जाहिरी बात है कि उनको लंग कैंसर तो होगा लेकिन वो नॉन स्मोकर्स थे। ये हमने कहाँ से, ये स्टडी से हमें इसी सिनेरियो से इंटरप्रेट होगी चीज़ें। अब हम फाइंड करते हैं कि ऑड्स रेशो, पहले तो मैंने आपको डाटा, पहले मैंने आपको बता दिया इसको बनाना कैसे है। पहले सबसे पहले स्टडी डिज़ाइन डिफाइन करना है, फिर आपको बता दिया कि सबसे पहले ये बाहर वाली चीज़ें एंट्री फिल करनी है, फिर अंदर आपको बता दिया कि ये वैल्यू मैंने किस तरीके अंदर डालनी है, इस टेबल के अंदर पुट की हैं। लास्ट के अंदर हमारे पास क्या रह गया, ऑड्स रेशो आप फाइंड करनी है। ऑड्स रेशो को मैंने बताया था क्रॉस प्रोडक्ट रेशो, ये जो प्रोडक्ट है इसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, डेट्स वाई इट इज़ नोन एज अ ऑड्स रेशो। अब ए को मल्टीप्लाई कर देते हैं डी से, बी को मल्टीप्लाई कर देते हैं सी से, ये फार्मूला आपने पहले देखा हुआ है। सिंपल आपने एंट्रीज फिल कर दी, 90 मल्टीप्लाई बाय 90 एंड 10 मल्टीप्लाई बाय 10, और हमारे पास जो रिजल्ट आया इवेंचुअली वो आया 81। तो इस 81 का क्या मतलब है, इस 81 की इंटरप्रिटेशन आप इस तरीके करेंगे, दोज पर्सन हु आर स्मोकर्स डिवेलप लंग हैविंग अ 81 टाइम्स ग्रेटर रिस्क ऑफ डेवलपिंग लंग कैंसर एज कम्पेयर टू द नॉन स्मोकर, कि 81 टाइम्स या 81% ज़्यादा चांस है स्मोकर्स के अंदर लंग कार्सिनोमा डेवलप करने का एज कम्पेयर टू द नॉन स्मोकर्स। सो दिस इज द बेसिक इंटरप्रिटेशन ऑफ दैट 81. Hope you will understood, hope you will understand. Now I will move forward. So the second thing, आज की डिस्कशन के अंदर हमें जो दूसरी चीज़ फाइंड करनी है, दैट इज़ द रिलेटिव रिस्क। अब रिलेटिव रिस्क हमारे पास क्या चीज़ है, ठीक है, ये बेसिक डेफिनेशन लिखी हुई है, ये वही बात है कि हमारे पास जो परसेंट एक्सपोज हो गए हैं उनमें डिजीज़ और जो एक्सपोज नहीं हुए हैं उनमें डिजीज़ की रेशो जो है वो है रिलेटिव रिस्क। सो इट इज़ द रेशो बिटवीन द इंसिडेंस ऑफ द डिजीज़ अमंग एक्सपोज्ड एंड द इंसिडेंस ऑफ द डिजीज़ अमंग नॉन एक्सपोज्ड। तो एक जो रेशो है इसको हम क्या कह रहे हैं, रिलेटिव रिस्क कह रहे हैं, कि एक्सपोज जो थे उनमें इंसिडेंस कितनी थी, जो नॉन एक्सपोज थे उनमें कितनी इंसिडेंस थी, दोनों को हमने उसकी रेशो ले ली तो वो क्या बन गया, रिलेटिव रिस्क बन गया। इट इज़ जस्ट सेम डैट एज डैट ऑफ द ऑड्स रेशो, लेकिन ये हम कोहॉर्ट स्टडी में कैलकुलेट करते हैं, और केस कंट्रोल स्टडी में क्या कैलकुलेट करते हैं, क्रॉस प्रोडक्ट रेशो या ऑड्स रेशो। अब ये जो रिलेटिव रिस्क है इसका फार्मूला क्या है, सारी चीज़ें वही हैं, आपके पास ये एक्सपोजर बताया हुआ है, यस या नो, डिजीज़ बताई हुई है, आउटकम यस या नो, ABCD। अब रिलेटिव रिस्क का फार्मूला ये है कि A डिवाइडेड बाय द A प्लस बी, सिंपल इज दैट, और C डिवाइडेड बाय द C प्लस डी। ये फार्मूले जो हैं ये स्टैंडर्ड हैं,
ये अपने से नहीं बनाए गए, इनका कंसेप्ट है, ठीक है। तो ये आपने इसी तरीके याद करने हैं, ए डिवाइडेड बाय द ए प्लस बी, सी डिवाइडेड बाय द सी प्लस डी। आगे सिनेरियो से मैं आपको समझाता हूँ, फिर आपको सही समझ आएगी इंशाल्लाह। तो अब आप ये देखें कि अब ये सिनेरियो मैंने बनाया हुआ है कि स्टडी इन रोज 100 स्मोकर्स एंड नॉन स्मोकर्स। अब स्टडी डिज़ाइन देखें, इंटरप्रेट करना सीखें कि स्टडी इन रोज 100 स्मोकर्स एंड नॉन स्मोकर्स, उन्होंने कहीं नहीं, आउटकम का कहीं अभी जिक्र नहीं है। दे आर फॉलोड फॉर 20 ईयर्स, ठीक है। अब उनकी ये फ्यूचर का बताया सेंटेंस है कि दे आर फॉलोड फॉर 20 ईयर्स, उनके अंदर 20 साल उनको फॉलो किया गया फॉर द डेवलपमेंट ऑफ लंग कैंसर। तो देखें कि एक एक्सपोजर प्रोवाइड किया, फिर उसको 20 साल फॉलो किया और फिर हैपनिंग देख रहे हैं, और वो क्या है, डेवलपमेंट ऑफ लंग कैंसर। तो ये कौन सी स्टडी हुई, ये कोहॉर्ट स्टडी हुई, ठीक है। मैंने कोहॉर्ट स्टडी के ऊपर पहले बड़ी डिस्कशन कर लिया, ज़्यादा नहीं करते। ये कौन सी स्टडी हमारे पास हुई, कोहॉर्ट स्टडी, बिकॉज यहाँ पे सिर्फ हमने एक्सपोजर प्रोवाइड किया है और हमने उनको फॉलो किया है और हैपनिंग हम देख रहे हैं। तो ये हमारे पास कौन सी स्टडी आ गई, कोहॉर्ट स्टडी। अब इसके अंदर जो फाइंडिंग्स आपने पुट करनी है वो किस तरीके से, 30 ऑफ द स्मोकर्स एंड 10 ऑफ द नॉन स्मोकर डेवलप लंग कैंसर। आ जाए देख लेते हैं कि 2x2 टेबल इसका किस तरीके बनाएंगे। सबसे पहले स्टडी डिज़ाइन। स्टडी डिज़ाइन मैंने आपको इंटरप्रेट करने का बता दिया कि इसके अंदर सिर्फ एक्सपोजर का जिक्र किया गया है, फिर फॉलो किया गया पेशेंट को और डेवलपमेंट ऑफ लंग कैंसर देख रहे हैं। तो ये कौन सी स्टडी है, कोहॉर्ट स्टडी। इससे हम क्या चीज़ फाइंड करते हैं, रिलेटिव रिस्क या रिस्क रेशो फाइंड करते हैं। अब यह रिलेटिव रिस्क या रिस्क रेशो फाइंड करते हैं। अब सबसे पहले तो आपने 2x2 टेबल कंस्ट्रक्ट करना है। सिंपल, आपने 2x2 2 रोज 2 कॉलम्स बना दी, डेट्स ऑल। फिर एक्सपोजर आपने देख लिया कि स्मोकर हैं या नॉन स्मोकर हमने स्टडी में लिए हैं, और डिजीज़ के अंदर या तो लंग कार्सिनोमा होगा या नहीं हो, कंट्रोल का मतलब है या नहीं होगा, ठीक है। अब पीछे दोबारा चले जाते हैं। अब वो कहता है कि 30 ऑफ द स्मोकर्स एंड 10 ऑफ द नॉन स्मोकर्स डेवलप लंग कैंसर। 30 ऑफ द स्मोकर्स, तो स्मोकिंग वाला खाना ये आ गया और उनको क्या था, लंग का कैंसर था। सॉरी, एक और चीज़ इसके अंदर आप कर लें पहले, कंफ्यूज नहीं होंगे फिर। टोटल कितने पेशेंट थे हमारे पास, 100 ही स्मोकर थे और 100 ही नॉन स्मोकर थे। तो मैंने देखे क्या लिख दिया, 100 स्मोकर लिख दिए हैं, 100 नॉन स्मोकर लिख दिए हैं। इसमें कोई मुश्किल बात है, सिंपल। आपने टोटल ए प्लस बी करके टोटल इंडिविजुअल की ना, पहले ही आपको पता है कि स्मोकर्स भी 100 हैं, नॉन स्मोकर भी हमने स्टडी में 100 लिए हुए हैं, तो आपने टोटल करके पहले ही अपनी जान छुड़ा ली, यहाँ पे लिख लिया। अब देख लेते हैं, वो कहते हैं 100 जो स्मोकर्स थे उनमें से 30 के अंदर क्या हुआ, लंग कैंसर डिवेलप हुआ, ठीक है। ये देख लें, 30 ऑफ द स्मोकर्स डिवेलप लंग कैंसर। अगला देखें, 10 ऑफ द नॉन स्मोकर डिवेलप लंग कैंसर। 30 ऑफ द स्मोकर को मैंने यहाँ पे लिख दिया, स्मोकर और लंग कैंसर उनमें डिवेलप हुआ। अब 10 ऑफ द नॉन स्मोकर, तो नॉन स्मोकर 10 जो थे उनमें भी लंग कैंसर डिवेलप हो गया। वो स्मोकिंग की वजह से नहीं, किसी और वजह से भी हो सकता है। तो हम तो स्टडी देख रहे हैं, तो हमने तो देखना है कि वो बस स्मोकिंग नहीं करते थे, तो वो उनके अंदर हमारे पास क्या हो गया कि डेवलप हो गया लंग कैंसर, तो वो 10 आ गए। अब यहाँ पे देखें 70 और 90 आपको कहीं पे भी नहीं मिलेंगे। जहाँ पे जो मैंने 70 और 90 का जिक्र किया हुआ है, ये आपको पीछे क्वेश्चन में तो नहीं नज़र आ रहा। तो ये मैंने किस तरीके निकाला है, ऑब्वियसली 100 स्मोकर से 30 में हो गया लंग कैंसर डिवेलप। तो कंट्रोल का मतलब है विदाउट लंग कैंसर, तो जाहिर बात है 70 ऐसे होंगे जो स्मोकिंग तो करते हैं लेकिन लंग कार्सिनोमा डेवलप नहीं हुआ, तो ये 70 यहाँ से आया मेरे पास। अब 10 ऐसे थे नॉन स्मोकर जिनमें लंग कैंसर हो गया है। अब नॉन स्मोकर्स 10 ऐसे हैं जिनमें लंग कैंसर हो गया है। टोटल कितने थे, 100, तो 10 में हो गया, तो जाहिर बात है जो 90 नॉन स्मोकर हैं उनमें नहीं हुआ, तो हम उसको यहाँ पे मेंशन कर देंगे। यहाँ पे नहीं दिया होगा, यहाँ पे सिर्फ 2 वैल्यूज़ ही हमेशा दी होती हैं, जो ये वाली एक टोटल अमाउंट इंडिविजुअल्स दिए होते हैं, बाकी हमारे पास वैसे जिनमें डिजीज़ डेवलप हुई हुई है वो दिए होते हैं। हमने टोटल में से जिनमें डिजीज़ डेवलप हो गई है उसको माइनस करते हैं, तो दूसरी वैल्यूज़ आ जाती हैं। सिंपल सारी बात है ये, ठीक है। यहाँ पे अब आपको यहाँ पे पता लग गया। इसके बाद आपने क्या लिख देना है, ये फाइन वैल्यूज़ आपने पुट कर दी, उसके बाद आपने ABCD, सिंपल ABCD लिख देना है। अब रिलेटिव रिस्क का फार्मूला क्या है, A डिवाइडेड बाय द A प्लस बी, ठीक है, और C डिवाइडेड बाय द C प्लस डी, यानी A डिवाइडेड बाय द A प्लस बी और डिवाइडेड बाय द C डिवाइडेड बाय द C प्लस डी। सिंपल फार्मूला है हमारे पास। तो 30 को डिवाइड करना है A प्लस बी कितना है, A और प्लस बी कितना 70,
और 30 100 हो गया, तो 30 डिवाइडेड बाय द 100 ऊपर आ गया, 10 हमारे पास यहाँ पे सी की जगह आ गया और 90 + 10 आ गया यहाँ पे, तो 10 डिवाइडेड बाय द 100। सिंपल आप इसकी मैथमेटिकल कैलकुलेटर से करें तो ये हमारे पास आंसर क्या आएगा 3। अब इस 3 का क्या मतलब है, जिस तरीके ऑड्स रेशो के अंदर आता था इसी तरीके यहाँ पे रिलेटिव रिस्क में है कि 3 का मतलब है कि स्मोकर्स हैविंग अ 3 टाइम्स मोर इंसिडेंस ऑफ और मोर रिस्क ऑफ डेवलपिंग लंग कैंसर एज कम्पेयर टू द नॉन स्मोकर। तो ये देखें कि लंग कार्सिनोमा की हमने स्मोकिंग के साथ एक एसोसिएशन डेवलप की है और स्टडी डिज़ाइन क्या है, कोहॉर्ट स्टडी है, तो हम इसको कह रहे हैं रिलेटिव रिस्क या रिस्क रेशो। अगर यही एसोसिएशन हम केस कंट्रोल स्टडी में देख रहे होते तो उसको हम क्या कहते, ऑड्स रेशो कहते। मूविंग फॉरवर्ड, होप यू विल अंडरस्टैंड। ये वही चीज़ है, मैंने दोबारा इसको कंक्लूजन के ऊपर कंक्लूसिव रिमार्क्स के ऊपर डाला हुआ है कि इवेंट हुआ है या नहीं हुआ, ये आपने एक्स एक्सिस पे लिख देना है और वाई एक्सिस के ऊपर एक्सपोजर था या ना नहीं था, तो ये आपका 2/2 टेबल आ गया। रिलेटिव रिस्क फाइंड करने के लिए क्या है कि ए डिवाइडेड बाय द ए प्लस बी डिवाइडेड बाय द सी डिवाइडेड बाय द सी प्लस डी, ये एक फार्मूला आपने याद करना है। ऑड्स रेशो का क्या फार्मूला है, क्रॉस प्रोडक्ट रेशो हमेशा याद रखना, ए मल्टीप्लाई बाय डी, बी मल्टीप्लाई बाय द सी, आपने फिर इन दोनों को आपस में डिवाइड कर देना है। जब भी रेशो निकालनी होती है, आपको पता है, ज़्यादा मेरे से ज़्यादा ही पता होगा, मैथ के अंदर भी आपने पढ़ा है कि जब भी रेशो निकालनी होती है तो आपको डिवीजन करनी पड़ती है। आपने इसकी एक फाइंडिंग ले ली, इसकी एक फाइंडिंग ले ली, दोनों का डिवाइड किया तो आपके पास क्या आ गया, रेशो। इसी तरीके इसको ए मल्टीप्लाई बाय डी किया डिवाइडेड बाय द सी मल्टीप्लाई बाय बी, तो आपके पास क्या आ गया, एक रेशो आ गई। अब ये रेशो हम एसोसिएशन देखने के लिए करते हैं जो कि मैंने आपको पहले बता दी है। अब मूविंग फॉरवर्ड, ये सिनेरियो ज़रा आप रीड करें। अब देखें इस सिनेरियो के अंदर क्या बताया हुआ है, ये मैंने एमसीक्यूज उठाया है, ये यूएचएस के एमसीक्यूज है। So from previous record, 2 groups were chosen. Group 1 was exposed to the risk factor. The other group was not exposed to the risk factor. Both the groups were followed up to note the incidence of disease. दो ग्रुप्स हैं, एक को एक्सपोजर दिया दूसरे को नहीं दिया, और अब हम आउटकम देखना चाह रहे हैं। तो सिंपल, हमने एक्सपोजर दिया है और हम आउटकम देखना चाह रहे हैं, तो ये कौन सी स्टडी हुई, ये कोहॉर्ट स्टडी हुई। और अगर यहाँ पे दिया होता कि दो ग्रुप हैं, एक में लंग कैंसर है एक में नहीं है, और हम इसकी कॉज ढूंढना चाहते हैं, तो वो कौन सी थी, केस कंट्रोल स्टडी थी। तो ये सिंपल आपको इस तरीके एमसीक्यूज आ जाते हैं। मैंने ऑप्शंस नहीं नीचे मेंशन किए हुए, लेकिन ये कौन सी स्टडी है, ये वाला जो एमसीक्यूज है, दिस इज़ द कोहॉर्ट स्टडी, बिकॉज इसके अंदर हम क्या देख रहे हैं, हमने एक्सपोजर प्रोवाइड की है, ठीक है। ग्रुप 1 वॉज एक्सपोज टू द रिस्क फैक्टर, अदर वॉज नॉट एक्सपोज टू द रिस्क फैक्टर। तो हमने एक्सपोज किया और हम क्या देखना चाह रहे हैं, इंसिडेंस ऑफ डिजीज़ जो फ्यूचर में होगी वो देखना चाह रही हैं। तो ये हमारे पास कौन सी स्टडी है, कोहॉर्ट। आगे चलते हैं। अब कई दफ़ा एमसीक्यूज जो आते हैं ना, वो इस तरीके आपको टेबल की शक्ल में दे देते हैं, 2x2 टेबल उन्होंने कंस्ट्रक्ट खुद ही किया होता है, ठीक है। ये हमारे पास उन्होंने टेबल दिया हुआ है और ये नीचे उसके ऑप्शंस दिए हुए हैं, ठीक है। मैंने उसको साइड पे कर दिया है। अब देखें उसने क्या कहा है, रिलेटिव रिस्क, डायरेक्ट क्वेश्चन है ये C1 लेवल का। तो रिलेटिव रिस्क हमारे पास जो है वो हमने कैलकुलेट करना है। तो रिलेटिव रिस्क कैलकुलेट करने का क्या फार्मूला था, वो अभी हम लगाते हैं। अब ये देखें कि रिस्क फैक्टर यहाँ पॉजिटिव है, एक्सपोज्ड है, नॉन एक्सपोज्ड है, यहाँ पे डिजीज़ हुई है, यहाँ पे डिजीज़ नहीं हुई। अब हमारा इसके अंदर से ऑप्शन क्या होगा, ये हम कैलकुलेट कर लेते हैं। अब रिलेटिव रिस्क क्या है, फार्मूला पहले आपने लिख लेना है। अब यहाँ पे ABCD नहीं लिखा होगा, ये आपने ABCD खुद ही लिख लेना है एक दफ़ा नीचे टेबल के अंदर। तो A डिवाइडेड बाय A+B जो फार्मूला था। अब देखें कि A हमारे पास क्या चीज़ आ जाएगी, 80 आ जाएगा। मैंने 80 यहाँ पे लिख दिया है। अब हमारे पास A+B, ये 920 + 80 हमारे पास कितने होंगे, 1000। तो मैंने A+B कितना लिख दिया, 1000। पीछे चलते हैं। अब देखें कि यहाँ पे हमारे पास क्या है, 4 है। C हमारे पास कितना आ गया, C हमारे पास 4 आ गया, मैंने 4 लिख दिया। अब 996 + 4 हमारे पास कितना आ गया,
1000, तो C प्लस D हमारे पास कितना आ गया 1000। सिंपल मैथमेटिकल कैलकुलेशन से मेरे पास जो आंसर आया वो कितना 20 आया। तो मैं ये वाला डेल्टा जो ऑप्शन है 20 मैं उसको टिक करूँगा, बिकॉज मेरे कैलकुलेशन के हिसाब से जो आंसर आया वो 20 और 20 इज़ द राइट आंसर। ठीक है, इस तरीके आपको MCQs भी आ सकते हैं। आगे चलते हैं। ऑड्स रेशो का मैंने एक MCQs डाला हुआ है। MCQs फ्रीक्वेंटली रिपीट होते हैं, MCQs तो बहुत ज़्यादा हर साल ही आ रहे हैं। 5-6 सालों से लगातार 5 नंबर का क्वेश्चन एज इट इज़ कॉपी होके आ जाता है, तो आपने ये लाजमी करना है। अब देखें ऑड्स रेशो। अब ऑड्स रेशो का उसने ये टेबल दिया हुआ है, 2/2 टेबल कंस्ट्रक्ट है। हमारा आंसर क्या होगा? अब क्रॉस प्रोडक्ट रेशो इसे कहते हैं। आपने इसको इसके साथ डिवाइड मल्टीप्लाई कर देना है, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर देना है, और दोनों के आंसर को आपने डिवाइड कर देना है। अब आगे चलते हैं, मैं आपको बताता हूँ। A मल्टीप्लाई बाय D, B मल्टीप्लाई बाय C, तो ये 22A आ गया, 55B आ गया, 2C आ गया, और 10 जो है वो हमारे पास D आ गया। अब 22A मल्टीप्लाई बाय D, तो 22 मल्टीप्लाई बाय 10, ठीक है। 22 मल्टीप्लाई बाय 10, A मल्टीप्लाई बाय D हमने किया है 22 मल्टीप्लाई बाय 10, ये वैल्यू आपको पता लग गया कैसे आई है। फिर B मल्टीप्लाई बाय C, ये B है, इसको इसके 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे C के साथ, तो ये मैंने लिख दिया 55 मल्टीप्लाई बाय 2। आंसर जो इवेंचुअली मेरे पास आया वो क्या आया? 2 आया। तो मैं इसके अंदर किसको मार्क करूँगा? ये अल्फ़ा ऑप्शन जो है मैं इसको मार्क करूँगा, ये ठीक ऑप्शन आ गया। ठीक है, आगे चलते हैं। अब देखिए मैंने यहाँ पे आंसर लिख दिया पहले ही, सॉरी आंसर मैंने यहाँ पे पहले ही लिख दिया 3.25 या 3.2 इसका आंसर है। अभी किस तरीके निकला है मैं आपको बताता हूँ। पहले आप जो है वो सिनेरियो रीड करें। ये UHS का क्वेश्चन है, ठीक है, जो पास्ट ईयर्स के अंदर आए हुए हैं। अब ये सबसे पहले मैंने आपको क्या था, जब भी सिनेरियो इस तरीके का आए आपने पहले स्टडी डिज़ाइन देखना है कि यार स्टडी डिज़ाइन क्या है। अब हम इसके अंदर देख लेते हैं। A research study was conducted in the community of the 10,000 टोटल कम्युनिटी है, 2000 स्मोकर हैं उसके अंदर। द पॉपुलेशन वॉज फॉलोड फॉर अ पीरियड ऑफ 10 ईयर्स। जब ये वॉज फॉलोड फॉर अ पीरियड ऑफ 5 ईयर्स, 10 ईयर्स, मे बी 40 ईयर्स, मे बी 30 ईयर्स, मे बी 25 ईयर्स, एनी रैंडम नंबर, तो ये जो फॉलोड फॉर अ पीरियड ऑफ द 10 ईयर्स है ना, मुझे ये फिक्रा पढ़ते ही पता लग गया यार ये क्या चीज़ है, ये कोहॉर्ट स्टडी है। अगला क्लू देखें कोहॉर्ट स्टडी का क्या है। इट वॉज फाउंड 40 अमंग स्मोकर्स, 40 अमंग स्मोकर्स एंड 50 अमंग नॉन स्मोकर डिवेलप लंग कैंसर। तो हमने क्या किया कि रिस्क फैक्टर को, एक्सपोजर को, स्मोकर्स को, ये स्मोकिंग क्या है, एक्सपोजर आ गया, और लंग कैंसर क्या है, हैपनिंग आ गई। तो इसको स्टडी कर रहे हैं, तो ये स्टडी डिज़ाइन हमारे पास कौन सा आ गया? कोहॉर्ट स्टडी या फॉरवर्ड स्टडी, बिकॉज उसने स्मोकिंग एक कॉज थी या एक्सपोजर था, और फिर उसको फॉलो करते रहे 10 साल के लिए, और देखा क्या कि लंग कैंसर होता है कि नहीं। तो ये स्टडी हमने इंटरप्रेट की, ये कौन सी स्टडी है? ये कोहॉर्ट स्टडी है। अब यहाँ पे कहीं पे नहीं लिखा यार कि कोहॉर्ट स्टडी, पहले तो वो कह रहा है 2/2 टेबल बनाएं, 2/2 टेबल हमने बना देना है। फिर वो दूसरा कहता है कि आपने कैलकुलेट द रिस्क एंड स्ट्रेंथ ऑफ द एसोसिएशन, ठीक है। अब ऑड्स रेशो जो है वो भी रिस्क एंड स्ट्रेंथ ऑफ द एसोसिएशन है, और रिलेटिव रिस्क जो है वो भी रिस्क और स्ट्रेंथ ऑफ एसोसिएशन को डिनोट करती है। आप क्या कैलकुलेट करेंगे? दोनों करेंगे तो वैसे ही कैंसिल हो जाएगा। आपने एक चीज़ कैलकुलेट करनी है। तो हम स्टडी डिज़ाइन के ऊपर डिसाइड करते हैं कि हमने क्या चीज़ कैलकुलेट करनी है। अगर तो केस कंट्रोल स्टडी है तो हम ऑड्स रेशो कैलकुलेट करते हैं, और अगर हमारे पास कौन सी स्टडी है, हमारे पास कोहॉर्ट स्टडी है, तो हम रिलेटिव रिस्क कैलकुलेट करते हैं, या रिस्क रेशो, रिलेटिव रिस्क का दूसरा नाम बताया था, रिस्क रेशो कैलकुलेट करते हैं। तो अब ये देखें हमारे पास कौन सी स्टडी है? कोहॉर्ट स्टडी है। सबसे पहले देखें मैंने स्टडी लिख दी है आपको समझाने के लिए, पेपर में नहीं आप लिख दें तो अच्छी बात है। कोहॉर्ट स्टडी है, रिलेटिव रिस्क को हम कैलकुलेट करेंगे। स्मोकर्स है, एक्सपोजर है, ठीक है, एक्सपोजर नहीं है। लंग कार्सिनोमा इन पेशेंट्स को डेवलप हो गया है, इनको नहीं हुआ। ये रफ वर्क के अंदर मैंने किया हुआ है सिर्फ आपको समझाने के लिए। अब स्मोकर्स कितने थे? सिंपल आपने टोटल में लिख देना है। स्मोकर 2000 थे। कितने स्मोकर्स थे? 2000। तो मैंने स्मोकर्स 2000 इधर लिख दिए।
10,000 की कम्युनिटी थी, 2,000 स्मोकर्स आ गए, तो ज़ाहिर बात है नॉन स्मोकर्स हमारे पास कितने होंगे, 8,000 बच गए हमारे पास। अब देखें वो कहता है कि 2,000 जो स्मोकर्स थे ना 10 साल उसको फॉलो करते रहे और 40 में लंग कार्सिनोमा डेवलप हुआ, तो मैंने 40 इधर लिख दिया। अब 1960 बंदे जो स्मोकिंग करते थे उनमें लंग कार्सिनोमा डेवलप नहीं हुआ, मैंने यहाँ पे ये फाइंडिंग लिख दी। 1960 यहाँ पे कहीं पे नहीं लिखा हुआ, ये आपने कहाँ से निकाला, सिर्फ अपना दिमाग थोड़ा सा इस्तेमाल करके कि 2000 स्मोकर्स थे, 40 में वो कह रहा है लंग कैंसर हुआ है, तो बाकी कितने बचे जो स्मोकिंग करते थे जिनमें लंग कैंसर ना हुआ, 1960 ऑब्वियसली। फिर वो कहते हैं कि 50 अमंग द नॉन स्मोकर डेवलप लंग कैंसर, 50 अमंग द नॉन स्मोकर यहाँ पे आ गया और उसके अंदर लंग कैंसर हो गया, तो मैंने 50 यहाँ पे पुट कर दिया। अब ये 8,000 बंदे थे जो नॉन स्मोकर थे, उनमें से सिर्फ 50 को डेवलप हुआ है लंग कैंसर, बाकी 7,950 को डेवलप नहीं हुआ, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया। ये आपका 2x2 टेबल कंस्ट्रक्ट हो गया। आधे नंबर इसके बनाने के हैं। अब आधे नंबर जो हैं वो क्या है, कैलकुलेट द रिस्क स्ट्रेंथ ऑफ द एसोसिएशन, इंटरप्रेट योर रिजल्ट्स। अब आपको पता लगे कि कोहॉर्ट स्टडी है, मैंने रिलेटिव रिस्क फाइंड करना है, उसका उसी तरीके फार्मूला है ए डिवाइडेड बाय द ए प्लस बी, सी डिवाइडेड बाय द सी प्लस डी। अब आपने उसी को फिलअप कर देना है। ए हमारे पास क्या है 40 डाल दिया, ए प्लस बी 1960 और 40 कर लेंगे, 2000 आ गए। डायरेक्ट आपको पहले बताया यहाँ पे अगर टोटल लिख लेंगे ना तो ये प्लस माइनस के चक्कर में नहीं पड़ेंगे, डायरेक्ट ही आप 2000 लिख देंगे। बाकी सी क्या है 50 है और सी प्लस डी डायरेक्ट हमारे पास कितना आ गया 8000 आ गया। अगर प्लस करेंगे तो जाहिर बात है 8000 ही आएगा, अपनी मर्जी है जिस तरीके आप फिजिबल हो। फिर हमारे पास जब मैंने इसको कैलकुलेटर से कैलकुलेट किया, आपको कैलकुलेटर लाजमी पेपर में लेके जाना है, एक ख़रीद लें तो अच्छी बात है या पुराना पेटी में से निकाल लें, तो 0.02 हमारे पास ये आंसर आ गया। और इसको मैंने जब डिवाइड किया 50 डिवाइड बाई 8000 ये रिज़ल्ट आ गया। दोनों को जब आपस में डिवाइड किया अकॉर्डिंग टू द फार्मूला तो मेरे पास आंसर आ गया 3.2 राउंडली। तो इसका 3.2 का क्या मतलब है, तो हमारे पास मैंने जो पहले क्या कहते हैं रिज़ल्ट लिखा हुआ है वो क्या लिखा हुआ है 3.2। तो ये किस तरीके निकाला मैंने आपको बता दिया है कि मैंने किस तरीके निकाला है। अब इंटरप्रेट द रिज़ल्ट। 3.2 जो रिज़ल्ट है इसका मतलब है कि द स्मोकर्स हैविंग 3 टाइम्स और द 3.2 टाइम्स मोर चांस ऑफ डेवलपिंग द लंग कैंसर एज कम्पेयर टू द नॉन स्मोकर्स। लंग कैंसर बार बार मैंने इसलिए इंक्लूड किया है बिकॉज आपको इजीली पता है कि स्मोकर्स में यार लंग कैंसर होता है और आप इजीली अंडरस्टैंड कर सकते हैं, तो मैंने वो सिनेरियो को टच किया जिसके अंदर ज़्यादा लंग कैंसर के बारे में बताया ताकि आपकी समझ में बातें आ जाएं। आगे चलते हैं। अब देखें ये भी यूएचएस का क्वेश्चन है ये वाला, ठीक है, और ये भी यूएचएस का ही क्वेश्चन है, ये भी यूएचएस का क्वेश्चन है, लेकिन इसने क्या किया है कि इसने अब सिंपल ये क्वेश्चन है C1 का आप कह सकते हैं कॉग्निशन लेवल का। यहाँ पे देखें उसने 2x2 टेबल आपके सामने बनाया दिया हुआ है। आपने क्या करना है, ऑड्स रेशो फाइंड करनी है और अपना इंटरप्रेट करना है रिजल्ट्स को। तो सिंपल ए बी सी डी आप लिख देंगे, ए मल्टीप्लाई बाय डी, बी मल्टीप्लाई बाय सी। तो देख लेते हैं ए मल्टीप्लाई बाय डी, बी मल्टीप्लाई बाय सी। तो देखें ए क्या है 60, डी क्या है 60, तो ए मल्टीप्लाई बाय डी 60 आ गया। बाकी हमारे पास 90 क्या था वो हमारे पास बी देखें तो वो हमारे पास 90 आ गया, सी देखें वो भी 90 आ गया। मैंने वो यहाँ पे पुट कर दिए, जब मैंने कैलकुलेट किया तो 0.4। तो 0.4 का मतलब है कि द पर्सन हु टेकिंग द कॉफ़ी हैविंग 0.4 टाइम्स मोर रिस्क ऑफ डेवलपिंग मायोकार्डियल इन्फॉक्शन एज कम्पेयर टू द पर्सन नॉट टेकिंग द कॉफ़ी। तो ये हमारे पास सिंपल इसकी इंटरप्रिटेशन आ गई 0.4 की। अब देखें आप दिमाग ज़रा थोड़ा इस्तेमाल करें तो 0.4 जो है वो बहुत एक मिनिमल वैल्यू है। तो अंदाज़ा हमें एपिडेमियोलॉजिकल स्टडी से ये हो गया कि जो कॉफ़ी है उसका बहुत लेस इफ़ेक्ट है मायोकार्डियल इन्फॉक्शन के अंदर। लेकिन अगर पीछे अगर आप देखें स्मोकिंग का तो यहाँ पे क्या निकला है 3.2, तो 3 टाइम्स ज़्यादा रिस्क है। लेकिन यहाँ पे क्या निकला है 0.4। अब 0.4 एक बहुत मिनिमल वैल्यू है, तो आप इसकी वैल्यू की रेंज से भी अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अगर वैल्यू ज़्यादा होगी तो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एसोसिएशन है और वैल्यू जिस तरीके कम होगी तो उसकी उतनी ही कम एसोसिएशन है। होप यू विल अंडरस्टैंड दिस कंसेप्ट। आगे हमारे पास चलते हैं। मैं सिर्फ आपका कंसेप्ट बिल्डअप करने के लिए बार बार डिफरेंट एससीक्यूज़ इसलिए इंक्लूड किए हैं मैंने
ताकि आपको इसकी अहमियत उजागर हो और आपको पता लगे कि ये 2/2 टेबल बहुत इंपॉर्टेंट है। और रिकरेंट सप्ली में, एनुअल में, इन द पास्ट 5 to 6 ईयर्स हर साल क्वेश्चन आ रहा है 2/2 टेबल्स में। एपिडेमियोलॉजी चैप्टर के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट है ही 2/2 टेबल। अब ये ज़रा आप करें और ईमानदारी से आपने अपने आप को एनालाइज करना है कि अभी तक आपको समझ आया कि नहीं। सबसे पहले मैंने आपको क्या बताया था कि आपने स्टडी डिज़ाइन देखना है। तो ये स्टडी डिज़ाइन क्या है? इन अ स्टडी ऑफ द केमिकल वर्कर्स 400 विद रेस्पिरेटरी डिजीज़। अब उसने यार आउटकम पेशेंट का दे दिया कि 400 स्टडी डिज़ाइन हम कर रहे हैं केमिकल वर्कर्स में, और 400 ऐसे हैं जिनको लंग कैंसर है, जिनको डिजीज़ है, मतलब ये केस कंट्रोल स्टडी है, सिंपल इज़ डैट। और 150 ऐसे हैं विदाउट द रेस्पिरेटरी डिजीज सिलेक्टेड फॉर द एग्जामिनेशन। तो केस कंट्रोल स्टडी मुझे तो यहाँ से ही पता लग गया, ठीक है। अब वो कहते हैं कि द इन्वेस्टिगेटर ऑब्टेन्ड अ हिस्ट्री। जब उसने डिग आउट की हिस्ट्री तो उसको पता लगा कि जो एक्सपोजर था पेशेंट्स का, बोथ ग्रुप ऑफ द वर्कर्स जो थे वो एक्सपोज थे किसी सॉल्वेंट से। अब उस सॉल्वेंट का उसने नाम नहीं लिखा। अब फिर वो आगे कहता है कि अमंग द वर्कर्स एक इन्वायरमेंट में रहते थे और वो एक्सपोजर थे किसके साथ? किसी सॉल्वेंट के साथ। सॉल्वेंट का उसने नाम मेंशन नहीं किया, ठीक है। अमंग द वर्कर्स विद द रेस्पिरेटरी डिजीज 250 गेव द हिस्ट्री ऑफ एक्सपोजर टू द सॉल्वेंट। तो हमारे पास अमंग वर्कर्स विद रेस्पिरेटरी डिजीज़, वो जो 400 थे रेस्पिरेटरी डिजीज़ के साथ, 250 ने हिस्ट्री दी कि हमारा एक किसी पर्टिकुलर सॉल्वेंट के साथ एक्सपोजर किसी टाइम में हुआ था। और 50 आगे क्या लिखा हुआ है? ये इंटरप्रिटेशन यार 2/2 टेबल कुछ भी नहीं है। सिनेरियो सिर्फ रीड करना और उसको इंटरप्रेट करना ही कमाल है, ठीक है। बाकी हमारे पास 2/2 टेबल इज़ नथिंग। ये सिनेरियो को आपने अगर इंटरप्रेट कर लिया सही तरीके, स्टडी डिज़ाइन आपको पता लग गया कि यार ये केस कंट्रोल स्टडी है। अच्छा 2/2 टेबल के अंदर इसके अंदर ए ये है, बी ये है, सी ये है, डी ये है, आपने खुद ही उसको कंस्ट्रक्ट करना है, ठीक है। तो देखें इसके अंदर पहला सवाल ही क्या दिया हुआ है? स्टडी डिज़ाइन बताओ। तो उसका 1 नंबर है। फिर कैलकुलेट द मेजर ऑफ एसोसिएशन एंड इंटरप्रेट द रिजल्ट। अब यहाँ पे अगर आप स्टडी डिज़ाइन ठीक बताएंगे तो अगले 3 नंबर ले सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आपने केस कंट्रोल की जगह कोहॉर्ट स्टडी को इधर बता दिया, एक यहाँ से गया, फिर आप कोहॉर्ट स्टडी के लिए रिलेटिव रिस्क फाइंड करेंगे तो 3 नंबर यहाँ से गए, यानी 4 नंबर तो आपके चले गए। 5वां नंबर आपका कैसे जाएगा? कोहॉर्ट स्टडी के आप 2 डिसएडवांटेजेस लिख देंगे या क्रॉस सेक्शनल स्टडी के डिसएडवांटेज लिख देंगे। तो एक डायग्नोसिस आपने स्टडी को आप अगर क्या कहते हैं आइडेंटिफाई ना कर पाए तो यानी 5 के 5 नंबर चले गए। तो आपको अब पता लग गया कि कितनी इंपॉर्टेंट है स्टडी डिज़ाइन को आइडेंटिफाई करना। सबसे पहले देखें कि 400 विद रेस्पिरेटरी डिजीज़, तो ये तो पक्का पता लग गया केस कंट्रोल स्टडी है। अब आपने इसका 2/2 टेबल बनाना है। 2/2 टेबल बना लेते हैं। 400 थे रेस्पिरेटरी डिजीज़ वाले, 150 थे विदाउट रेस्पिरेटरी डिजीज़। बना लेते हैं भाई टेबल, ठीक है। सबसे पहले आप देख लें हमारे पास क्या आ गया, ये स्टडी डिज़ाइन। स्टडी डिज़ाइन हमारे पास कौन सा है? केस कंट्रोल स्टडी। और उसके अंदर हम फाइंड क्या करते हैं? ऑड्स रेशो कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। एक्सपोजर आ गया, किसी सॉल्वेंट के साथ है, एक्सपोजर है या एक्सपोजर नहीं है। फिर रेस्पिरेटरी डिजीज़ डेवलप हुई है, यहाँ रेस्पिरेटरी कंट्रोल का मतलब होता है रेस्पिरेटरी डिजीज़ डेवलप नहीं हुई। अब इसकी फाइंडिंग्स लिख देते हैं। वो कहते हैं 250 गेव द हिस्ट्री विद रेस्पिरेटरी अमंग वर्कर्स विद रेस्पिरेटरी डिजीज। 250 ने सॉल्वेंट के साथ एक्सपोजर की हिस्ट्री दी है। तो मैंने 250 सॉल्वेंट के साथ एक्सपोजर यस है और वो रेस्पिरेटरी डिजीज़ वाले हैं, उसको इसके अंदर लेबल कर दिया। आगे चलते हैं। वो कहते हैं कंपेयर टू द 50 ऑफ द वर्कर्स विदाउट रेस्पिरेटरी डिजीज़। वो कहता है कि हमारे पास 50 ऑफ द वर्कर्स जो हैं विदाउट रेस्पिरेटरी डिजीज़, जिनके अंदर रेस्पिरेटरी डिजीज़ हमारे पास नहीं है, वो भी हमारे पास एक्सपोज हुए हैं। तो यहाँ पे देखें कि सॉल्वेंट के साथ एक्सपोजर तो है लेकिन डिजीज़ नहीं हुई, तो 50 मैंने यहाँ पे लिख दिया। अब देखें ये इंटरप्रिटेशन ही इंपॉर्टेंट है। मुझे भी इनिशियली नहीं समझ आता था यार ये क्या चीज़ है, हालांकि अभी हुआ तो बेसिकली एक ही दिन है मुझे पढ़े हुए ये। बहरहाल वो एक ही दिन में मुझे नहीं समझ आ रहा था पहले कि यार इसको किस तरीके इंटरप्रेट करना है, लेकिन जब इसको डिटेल में पढ़ा था पता लगा कि इसको इस तरीके इंटरप्रेट करना है। तो आप भी सीखें कि अमंग द वर्कर्स विद रेस्पिरेटरी डिजीज़
250 गेव द 400 थे टोटल, 250 ने एक्सपोजर दे दिया जनाब, हमारा एक्सपोजर हुआ था सॉल्वेंट के साथ। अब सॉल्वेंट उसका नाम उसने नहीं दिया हुआ, तो रेस्पिरेटरी डिजीज़ में 250 आ गए, 400 मरीज टोटल थे एक्सपोजर वाले, उसके अंदर से हमारे पास 250 ने दे दिया जनाब हमारा एक्सपोजर हुआ था, ठीक है। और आगे उसने दिया है, अब ये फिक्रा जो है ना, ये शायद आपको तंग करे, कंपेयर टू द 50 ऑफ द वर्कर्स विदाउट द रेस्पिरेटरी डिजीज़। तो ये आपने क्या, इसका मतलब ये है कि 50 वर्कर्स ऐसे हैं जो एक्सपोज तो हुए हैं सॉल्वेंट के साथ, लेकिन उसके अंदर रेस्पिरेटरी डिजीज़ नहीं है। तो 50 ऑफ द वर्कर्स आ गए विदाउट रेस्पिरेटरी डिजीज़। अब देख लें कि 400 टोटल थे जो रेस्पिरेटरी डिजीज़ वाले थे। अगर 250 ने हिस्ट्री दी है कि हमारा एक्सपोजर हुआ था सॉल्वेंट के साथ, तो जाहिर बात है बाकी 150 ऐसे होंगे जो हिस्ट्री देंगे कि हमारा एक्सपोजर नहीं हुआ था सॉल्वेंट के साथ। और द अदर वे राउंड ऐसे पेशेंट 150 टोटल ऐसे पेशेंट थे जो रिस्पिरेटरी डिजीज़ जिनमें नहीं थी, यानी वो कंट्रोल वाले खाते में आते थे। तो 150 हमारे पास आ गए कंट्रोल वाले खाते में। अब उनमें रेस्पिरेटरी डिजीज़ हमारे पास नहीं थी, रेस्पिरेटरी डिजीज़ नहीं थी, लेकिन 50 ने हिस्ट्री दी कि यार हमारा एक्सपोजर हुआ था सॉल्वेंट के साथ, लेकिन उनमें डिजीज़ नहीं हुई। तो 50 ने अगर हिस्ट्री दी है कि सॉल्वेंट के साथ एक्सपोजर था, तो 100 क्या आ गया कि उनका एक्सपोजर हमारे पास नहीं हुआ। तो ये आपका 2/2 टेबल कंस्ट्रक्ट हो गया है, यहाँ पे 2/2 टेबल आपका कंस्ट्रक्ट हो गया। अब आपने क्या करना है कि आपको पता है कि ये केस कंट्रोल स्टडी है, सिंपल ऑड्स रेशो निकालना है। अगर आप पहले ये केस कंट्रोल स्टडी को सही आइडेंटिफाई करेंगे, सही सही जगह वैल्यू पुट करेंगे, 2/2 टेबल सही बनाएंगे, तब ये तीसरा स्टेप होगा, ये तीसरा स्टेप है। अब ऑड्स रेशो के अंदर आप देखें कि आपने क्या करना है, क्रॉस प्रोडक्ट रेशो है, इसको इसके साथ और इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर दें, A मल्टीप्लाई बाई D, B मल्टीप्लाई बाई C। तो आप देखेंगे हमारे पास, आपने इसको जब मल्टीप्लाई किया तो आपके पास आंसर आया 3.33। अब 3.33 को आप किस तरीके इंटरप्रेट करेंगे, दो लाइनों में आपने इंटरप्रेट कर देना है कि दोज पर्सन हु आर एक्सपोज टू द सॉल्वेंट have 3.33 times greater risk of developing respiratory disease as compared to persons who do not expose to the solvent। so simple ये है कि 3.33 टाइम या 3 टाइम्स हमारे पास जो जिनके साथ एक्सपोजर हुआ है, जिनका सॉल्वेंट के साथ एक्सपोजर हुआ है, उनमें चांस है 3 टाइम्स ग्रेटर रिस्क ऑफ डेवलपिंग रेस्पिरेटरी डिजीज एज कम्पेयर टू द पर्सन हु डू नॉट एक्सपोज टू द सॉल्वेंट। तो ये हमारे पास इसका आंसर, सिंपल आंसर आ गया। आगे हमारे पास ये केस कंट्रोल स्टडी और कोहॉर्ट स्टडी की हमारे पास कुछ स्ट्रेंथ्स लिखी हैं, बेनिफिट्स लिखे हुए हैं, और कुछ हमारे पास लिमिटेशंस लिखी हैं। मैंने ये टेबल इंक्लूड इसलिए कर दिया है बिकॉज 1 नंबर का जो क्वेश्चन उसने लास्ट में दिया हुआ है वो कहता है कि इनलिस्ट द 2 मेन डिसएडवांटेजेस ऑफ दिस स्टडी डिज़ाइन। तो आप उसका लिमिटेशन मतलब डिसएडवांटेजेस में आ जाएगा, तो आपने ये याद करके ये लिख देने हैं, ठीक है। सिंपल इज डैट, ये इतना ज़्यादा क्या कहते हैं समझाने वाली चीज़ नहीं है, आप ये पढ़ लीजिएगा, इंशाल्लाह आपको समझ आ जाएगा, ठीक है। अब आगे चलते हैं, हमारे पास 2-3 आप याद कर लें, बस सिंपल वही हमारे पास क्या कहते हैं काफ़ी होंगे। अब ये देखें, ये लास्ट सिनेरियो है जिसको मैं इंटरप्रेट करूँगा। आगे मैंने सिनेरियो तो इंक्लूड किए हुए हैं, लेकिन लेक्चर ज़्यादा लंबा हो जाएगा, ज़्यादा लंबा नहीं करेंगे बिकॉज इतने ज़्यादा सिनेरियो के अगर मैं लेक्चर बनाने लगूँ सारे सिनेरियो का तो बहुत लंबा हो जाएगा। तो मैं सिर्फ आपके कैपेसिटी बिल्डअप करने के लिए और कंसेप्ट क्लियर करने के लिए बार बार सिनेरियो को इंक्लूड किया ताकि आपको कोई कन्फ्यूजन ना हो। अब देखें, सबसे पहले आपने स्टडी डिज़ाइन क्या करना है, इंटरप्रेट करना है कि यार स्टडी डिज़ाइन कौन सा दिया, आइडेंटिफाई करना है, सॉरी। अ रिसर्च स्टडी वाज कंडक्टेड इन अ पॉपुलेशन ऑफ 3000, ठीक हो गया, अबव द 40 ईयर्स ऑफ द एज, ठीक है, टू नो द इफेक्ट ऑफ ओबेसिटी ऑन द डेवलपमेंट ऑफ डायबिटीज। अब देखें, उसने कॉज से एक्सपोजर किया है, ठीक है, ओबेसिटी एक यहाँ पे एक्सपोजर है, ऑन द डेवलपमेंट ऑफ डायबिटीज़, तो एक एक्सपोजर है और साथ डायबिटीज़ आपको पता है एक डिजीज़ है, तो एक्सपोजर प्रोवाइड किया है और डायबिटीज़ क्या है हमारे पास डिजीज़ है। तो ये कौन सी स्टडी हुई है हमारे पास, जाहिर सारी बात है यार कोहॉर्ट स्टडी हुई है हमारे पास। देर वर 200 ओबीज इन डैट कम्युनिटी। अब देखें यार ये वाला सीन है, मुझे तो इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा क्लूज़ मिल रहे हैं कि कोहॉर्ट स्टडी की। फॉर एग्जांपल सबसे पहले वो कहता है इफेक्ट ऑफ ओबेसिटी ऑन द डेवलपमेंट ऑफ डायबिटीज़, कि
ओबेसिटी को हमने देखना है ऑन द डेवलपमेंट ऑफ डायबिटीज़। यहाँ से थोड़ी सारी चलो अगर नहीं भी आपको कोहॉर्ट स्टडी की क्लियर होती सिचुएशन तो आगे देख लो। द पॉपुलेशन वाज फॉलोड फॉर अ पीरियड ऑफ 10 ईयर। फिर आपने जिन पेशेंट को ओबेसिटी थी 10 साल उनको देखते रहे और फिर देखा कि उनमें डायबिटीज़ डेवलप होती है कि नहीं होती। तो ये फ्यूचर स्टडी है, ये फॉरवर्ड स्टडी है कि यहाँ पे आपने ओबेसिटी थी और फिर पेशेंट को 10 साल आप फॉलो अप करते रहे और फिर यहाँ पे डायबिटीज़ है तो आपने देखा। तो ये फॉरवर्ड स्टडी कौन सी आ गई? कोहॉर्ट स्टडी आ गई। अब इसके अंदर वो पूछा हुआ है कि हाउ वुड यू मेक द 2x2 टेबल आपने बनाना है। अब स्टडी आपको पता होगी कोहॉर्ट स्टडी है तो 2x2 टेबल तो जाहिर बात है किसी के लिए भी बनेगा, ऑड्स रेशो के लिए किसी के लिए भी, तो 2x2 टेबल तो आप बना लेंगे। अगला जो काम है ना वो आपने रिस्क एंड स्ट्रेंथ करना है। तो ये कोहॉर्ट स्टडी है तो आपने रिलेटिव रिस्क निकालना है और उसको इंटरप्रेट करना है। आगे देखिए मैंने निकाला हुआ है, बड़ा आसान है, देख लेते हैं। अब देखें कि सबसे पहले देखें स्टडी डिज़ाइन। स्टडी डिज़ाइन कौन सा है? कोहॉर्ट स्टडी है। रिलेटिव रिस्क निकलेगा या रिस्क रेशो हम आइडेंटिफाई करेंगे। अब एक्सपोजर क्या है? यहाँ पे ओबेसिटी है, ओबीज़ है या है, ओबीज़ पर्सनस हैं या नहीं है। डायबिटीज़ यहाँ पे है या कंट्रोल मैंने अब लिख भी दिया है कि विदाउट द डिजीज़, जिनमें डिजीज़ नहीं है। तो पीछे स्टेटमेंट पढ़ें, वो कहता है देर वर 200 ओबीज़ इन दैट कम्युनिटी। 200 ओबीज़ इन दैट कम्युनिटी। तो मैंने यहाँ पे ओबीज़ वाला खाना देखा और यहाँ पे सीधा डायरेक्ट लिख दिया कि ओबीज़ कितने हैं हमारे पास? 200। सिंपल इज डैट। टोटल पॉपुलेशन कितनी है? 3000 की पॉपुलेशन है। 200 अगर ओबीज़ हैं तो जाहिर बात है कि जो ओबीज़ नहीं है वो कितने होने चाहिए? 2800। मैंने ये 2800 यहाँ पे लिख दिया। अंदर जाने से पहले बाहर वाला जो वर्कअप है वो मैंने पूरा कर लिया यहाँ पे। अब मुझे सिर्फ ये 4 वैल्यूज़ को फिट करना है। अब यहाँ से वैल्यूज़ फिट कर लेते हैं। इट वॉज फाउंड दैट 40 अमंग ओबीज़, 200 ओबीज़ टोटल थे। 40 अमंग द अमंग द ओबीज़ उसने डायबिटीज़ डेवलप की, ठीक है। 40 अमंग ओबीज़ वाइल 56 अमंग नॉन ओबीज़ सब्जेक्ट डेवलप डायबिटीज़। तो 40 अमंग ओबीज़, 200 ओबीज़ टोटल थे और उनमें से कितने ने डेवलप की? 40 ने डिजीज़ डेवलप की जो डायबिटीज़ है। ज़ाहिरी बात है 40 ने अगर डेवलप की है तो 160 तो ज़ाहिरी बात है वही होंगे जिन्होंने नहीं की। तो 160 मैंने एज इट इज़ लिख दिया। अब वो कहते हैं कि 56 अमंग नॉन ओबीज़, 2800 हमारे पास क्या थे? नॉन ओबीज़ थे। उनमें से सिर्फ 56 ने हमारे पास क्या किया? डायबिटीज़ डेवलप की। तो वो मैंने इसको यहाँ पे लिख दिया कि डायबिटीज़ तो है लेकिन एक्सपोजर नहीं है, मतलब वो ओबीज़ नहीं है लेकिन उनमें फिर भी डायबिटीज़ हो गई है। तो मैंने 56 यहाँ पे लिख दिया। अगर 56 को डायबिटीज़ हुई है जो नॉन ओबीज़ हैं तो 2800 में से 56 माइनस करेंगे तो हमारे पास कितने बच गए? 2744, 2744। ये हमारे पास नंबर रिमेनिंग रह गया पर्सनस का जो कि नॉन ओबीज़ हैं और उनमें डायबिटीज़ नहीं हुई। अब ये आपका 2x2 कंस्ट्रक्ट हो गया टेबल। अब आपने क्या इसके अंदर सेकंड क्वेश्चन का पार्ट क्या था कि कैलकुलेट द रिस्क एंड स्ट्रेंथ ऑफ एसोसिएशन फॉर दिस स्टडी। तो आपने क्या किया कि अब रिलेटिव रिस्क आपको पता है कोहॉर्ट स्टडी है तो रिलेटिव रिस्क या रिस्क रेशो जिसका दूसरा नाम है वो आप निकालेंगे। तो उसका फार्मूला आपको बताया था ए डिवाइडेड बाय द ए प्लस बी डिवाइडेड बाय द सी डिवाइडेड बाय द सी प्लस डी। तो सिंपल फार्मूला आपने वैल्यूज पुट कर देनी है। आपको क्या निकल आया? 10 इसका आंसर निकला है। मैंने इसको कैलकुलेट किया, आप एक दफ़ा खुद भी कैलकुलेट करेंगे। द मोर प्रैक्टिस यू डू द मोर कमांड यू गेट ओवर दिस टेबल, ठीक है। तो ये ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे ज़्यादा इसकी कमांड आती जाएगी। तो 10 आ गया। तो 10 का क्या मतलब है? अब इंटरप्रेट कर देते हैं। 10 इसका आंसर आ गया। 10 का मतलब है दोज पर्सन हु आर ओबीज having a 10 times more chances of developing the diabetes as compared to those who are non-obese। रह तो एक ही जगह रहे हैं लेकिन ओबीज जो है वो 10 टाइम्स ग्रेटर रिस्क है डेवलपिंग द क्या चीज़ डेवलप करने का? डायबिटीज़ एज कंपेयर टू दोज हु आर नॉन ओबीज। यानी मोटे बंदों में 10 टाइम। इस स्टडी से हमें ये पता लगा कि मोटे बंदे जो हैं ओबीज जो हैं उनमें 10 टाइम्स ज़्यादा रिस्क है किस चीज़ का डेवलप होने का? डायबिटीज़ का। ये भी आपको पता लग गया। अब आगे मैंने क्या कहते हैं डिफरेंट सिनेरियोज और ऐड किए हैं
लेकिन वो मैं उसको सिर्फ क्या कहते हैं आपको बता देता हूँ इसके अंदर हमारे पास क्या चीज़ें दी हुई हैं। सबसे पहले देख लें कि इसको मैं ज़्यादा इंटरप्रेट नहीं करूँगा, सिर्फ स्टडी डिज़ाइन आपको बता दूँगा। इन अ स्टडी हिस्ट्री ऑफ स्मोकिंग वाज टेकन टू इन्वेस्टिगेट द एसोसिएशन ऑफ द स्मोकिंग विद द ओरल कैंसर्स। ठीक है, तो अब आपने देखना है कि इन अ स्टडी हिस्ट्री ऑफ स्मोकिंग वाज टेकन। अब हिस्ट्री ऑफ स्मोकिंग है, ठीक है, तो ये पास्ट में चले गए हैं, उस हिस्ट्री ले रहे हैं, एक्सपोजर खुद ही नहीं करवा रहे बल्कि हिस्ट्री ले रहे हैं, तो मतलब पास्ट में जा रहे हैं। हिस्ट्री ऑफ स्मोकिंग वाज टेकन टू इन्वेस्टिगेट द एसोसिएशन ऑफ स्मोकिंग विद ओरल कैंसर। तो हिस्ट्री ऑफ स्मोकिंग जब इसने ले ली तो इसका मतलब है कि यार ये कौन सी स्टडी है, सिंपल इज दैट केस कंट्रोल स्टडी है। ये पास्ट स्टडी हो रही है, ये बैकवर्ड स्टडी हो रही है कि ओरल कैंसर का स्मोकिंग के साथ देखा जा रहा है एसोसिएशन। आगे वही उसने पूछा हुआ है, आइडेंटिफाई द स्टडी डिज़ाइन, 2x2 टेबल कंस्ट्रक्ट करना है, आपने इंटरप्रेट करना है रिजल्ट। सिंपल इज दैट, जिस तरीके पहले हमने किया था वैसे ही आपने सारी चीज़ें कर देनी है। फिर आगे देखें, ये एक अलहदा क्वेश्चन आ गया। और अ रिसर्चर कंडक्टेड टू स्टडी एस्टेब्लिश टू researcher conducted a study to establish relationship between the alcohol intake and liver cirrhosis। अब देखें, एक स्टडी है, लीवर सिरोसिस और अल्कोहल का रिलेशन देखा जा रहा है। आपने पहले पूरा सिनेरियो रीड करना है, तब आपने बनाना है अपना इंटरप्रिटेशन देनी है या आइडेंटिफाई करना है स्टडी को। मुझे 2 लाइनें पढ़ के हो जाती है, लेकिन वो प्रैक्टिस के साथ है। आपने क्या करना है कि पूरा सिनेरियो पढ़ना है पहले और फिर आइडेंटिफाई करना है। आगे चलें, ही टुक 70 केसेस ऑफ लीवर सिरोसिस पेशेंट। अब उसने लीवर सिरोसिस के पेशेंट ले लिए हैं, तो ज़ाहिरी बात है अगर लीवर सिरोसिस के उसने पेशेंट ले लिए हैं तो एक हैपनिंग या आउटकम लीवर सिरोसिस है वो पहले ही हुआ है। तो ये कौन सी स्टडी आ गई, सिंपल इज़ दैट, ये केस कंट्रोल स्टडी है। तो इस तरीके आप क्या करते हैं, अपने पहले सिनेरियो को आइडेंटिफाई करेंगे, ठीक है, और फिर आप उससे केस कंट्रोल स्टडी है तो आपसे इंटरप्रिटेशन क्या करेंगे, ऑड्स रेशो निकालेंगे या क्रॉस प्रोडक्ट रेशो जिसका दूसरा नाम है। और फिर क्या कहते हैं, अब यहाँ पे देखें 2x2 उसने कंटिंजेंसी टेबल भी साथ लिख दिया है। तो कंटिंजेंसी से आपने क्या कहते हैं कंफ्यूज नहीं होना, ये मैंने आपको पहले बता दिया। 2x2 टेबल को कंटिंजेंसी टेबल भी कहते हैं। आगे चलते हैं, कंक्लूजन क्या है कि 2x2 टेबल प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन द एपिडेमियोलॉजी ऑफ द डिजीज़। हमने देख लिया कि हम इससे बड़ी सारी फाइंडिंग्स जो हैं वो कैलकुलेट करते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने आज के लेक्चर में आपको जो बताई है वो 6 फाइंडिंग यहाँ पे नहीं लिखी हुई रिलेटिव रिस्क वाली, सो सॉरी फॉर डैट। ऑड्स रेशो मैंने आज आपको बताया और फिर रिलेटिव रिस्क। इन द नेक्स्ट लेक्चर जब मैं बनाऊंगा इंशाअल्लाह तो वी विल डिस्कस अबाउट द specificity, sensitivity, positive predictive value and negative predictive value. How we calculate these specificity, sensitivity, positive predictive value, negative predictive value, we will discuss inshallah in the next lecture. So source of the knowledge, that is the K Park. This is a recommended book of the community medicine. Then I took the material from the internet, and the last but not least, that is the contribution by the by my teacher, that is Sir Zahid Masood. Then lastly, thank you. Hope you will understood and enjoy the lecture. Thank you very much for listening. Okay, Allah Hafiz.